Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Welcome a morning with new thoughts, more enthusiasm, and it will give you a much better day back in return. A very warm and enthusiastic morning to our respected Director General Shri Arun S. Bhatnagar sir, Principal sir, teachers, mentors, and everyone present here. Welcome to DSA Marathon 2021. I am Anushka Dubey from Indore Institute of Science and Technology, and I will be hosting today's session. The aim of this marathon is to provide an inclusive, collaborative, and welcoming environment to the participants to learn, build, and share their ideas, which is open to all regardless their experiences. DSA Marathon event is in collaboration with CodeChef IIST chapter and Geeks for Geeks IIST chapter, which will comprise of speaker sessions, daily practice questions, up-solving sessions, monthly contest, and much more. And not only this, to convince you further, we do have prizes for the winners. Apart from the weekly practice contest, to motivate the attendees and the participants, a monthly contest will be conducted every month end, which will comprise of the concepts that were taught in the previous month. Top performers of the monthly contest will be appreciated with the tokens of goodies, official merchandises, gift vouchers, prizes, and much more. In case of any help required, the mentors will be available 24/7 to help the participants. We heartily welcome you to this DSA Marathon. And we have our Honorable Director General Shri Arun S. Bhatnagar sir as today's event's chief guest. We welcome you, DG sir, to address the students. Over to you, sir. Thank you, Anushka. First of all, you accept my compliments for this initiative. It's an excellent initiative, and I welcome you all. That it's a new beginning in IST. And Dr. Keshav Patidarji, Dr. Rajkumar Jain, Dr. Dheeraj, Dr. Satish, Professor Puneet, and other faculty members and students. And the second thing which I am really liking is that our own student is the first speaker today, Abe. So best of luck, Abe. So 2 years back, or maybe when I joined, after 6 months or so, I asked from the students, what would you like to revise or in your last semester? So they said, sir, you arranged data structure algorithm session for us. So it was arranged. And then I was thinking, why they were asking me this particular subject. So I have probed a little bit, and then I found, and after reading articles, that it is necessary if you want to enter into the product-based company, or if you have a love to solve real-world complex problem, in both these areas, this data structure is needed. Then, being a student of economics and from the bureaucracy, old bureaucrat, I said, what is this all about? Then it was for my utter surprise, I'm using this data structure since long, although I was not aware that I'm using data structure in my real life. Whether it is related to record management of income tax department or arranging my shirts, for example. Because I'm very fond of shirts. So you can, now I can call it, I can name it, that's a tree. Tree is a shirt, a root, sorry. Root is a tree structure, shirt is a root. And I'm having various types of shirts, which I can categorize in casual and formal. In casual, I can further bifurcate casual or more casual, or you can say semi-casual and highly casual, which you can wear in when you are going to sea, beach, or forest areas. Funky shirts, you can call it. In formal also, you can divide into categories, formal or most formal. Then again, you can divide new shirts and old shirts in both casual, non-casual. So there are so many categories. Then you can further divide tailor-made or ready-made. So then I searched, then I was told this is an example of tree in data structure, which I am using it day by day.
And then we were using in our revenue department one concept called FIFO and LIFO, first in, first out, or last in, first out. For example, like a bus queue, the person who is standing in the queue will get in the bus first. So that is first in, and those who will join the queue later on will be the last. Likewise, when you are going to a dinner, to a big party, the plates are arranged in such a way that but the last plate will be picked up first. That is last in, first out. Or so many examples are there which we are using in our day-to-day life. They are all examples of why these companies, particularly big companies, are picking up the students who are well versed in data structure and algorithms. Very simple. That I'm asking a question from my faculty. That what are the options? Why you would like to pick up A, B, C, D option? Then one faculty will tell me, sir, I'm picking up X because it is better than A and B. But I could have gone for C also, but I felt that X option is better. So in our daily life, we are searching a person, or we are going with a person who can complete the task in a short amount of time with efficiency and using fewer resources, because this is the problem which all these companies are facing. This, because their data is big, their clientele is big, they are working on a very large scale. So the software developers, they are looking for who can make the right decision when it comes to solving this problem for the company, because everybody would like to do cost saving and maximize the benefit. So knowledge of data structure and algorithms attached with is going in a long way to solving these problems efficiently. And the company, when they are recruiting, are more interested in how candidates use this tool to solve their complex problem. It is just like a car machine needs right tool to fix the car and make it run properly. So this is absolutely necessary. Whether the candidate, the students can apply the right sets of tools to solve the given problem. So this is the challenge for you. If you want to go to Google, or if you want to go to Microsoft or Facebook or Amazon, then you must be thorough that coding will not do. Coding will, apart from coding, you have to be very clear about the data structure and algorithms. Because everybody would like to save the money. That is likewise, one example of books also, that I'm having lots of library in my house. So how shall I arrange library? That also you think whether I should arrange on the basis of size of the book, or shall I arrange the books on the basis of subject wise? Then after that, whether shall I do it alphabet after subject? So that is a perfect example of data structure. So that I was seeing is a very important aspect of our life, that we are using it without knowing it. So we are surrounded by a lot of real world complex problem, and you have to find a solution, and you should go the problem in depth, so that you can help your employer by giving a very simple solution. So important thing is data structure and algorithms help in understanding the nature of the problem at a very deeper level, and thereby a better understanding to the whole situation, to the whole environment is necessary. So as I have earlier also said, that attention to the details and very micro and perfect planning is needed when we are preparing algorithms. Because nowadays they are preparing algorithms in share market also, and they are predicting the behavior of, that is a different issue altogether, but the algorithms are used and very widely used. I met a couple of my friends in Gurgaon who are using algorithms and buying the shares. So these data structure and algorithms, you should be thorough apart from your other streams like AI, as I'm emphasizing again and again on AI, ML, and deep learning, that you should be thorough, because the next few years are of AI.
And but these core competence of data structure and algorithms are very much needed. So again, I must appreciate the efforts of the court chef office bearers like Anurag, Anushka, I'm not aware who are the others, and Sinha is there. So all of you must be complimented. I am proud of you, my boys, that you are doing wonderful, and keep it up. And time was short, but even then you have made it, and we are fully with you, with faculty, my principal sir, my dean, Dr. R.K. Jain sir, all three HODs, all the faculty of CS and IT are solidly behind you and in all your endeavors and all your pursuits, because we are having high hopes from this batch who is in the final year and the coming years. And I expect that you should do really wonders, and you should not be satisfied from your progress, what you have achieved so far. You have to do much, much better, because you are capable, because I'm having lots of confidence on you. And if you want to go to, you want to be recruited in Amazon or Microsoft, so today is the right time to give you a message. We can arrange a very intensive course for you, but you have to promise that you will arrange. I'm really assuring you, I will do everything possible at my resources, or I will be fully behind you, but you tell me what you want very intensively, and so that your pay package should be around more than 15 lakhs or 16 lakhs. Because I would like that thing to happen in IST with this batch itself. And with coming batch, I will again, enhance my bench. So I wish you all the best to all of you. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspirational and motivational words. Your words always mean a lot to us. So moving further, the mentor for our today's session will be Avik Gupta, sir, who is a front-end developer and a data science enthusiast. Avik, sir, is a Smart India Hackathon 2020 winner and has a good command on front-end and Flutter development. He also possesses great soft skills and is a senior disciple from Indore Institute of Science and Technology. The topic of discussion for today's session is Git and GitHub. Over to you, Avik, sir. First of all, let me clear that am I audible and visible clearly or not? Just So you are audible. It's all good. Okay, cool. Thank you so much, sir, to all the faculties for having me and for all the warm wishes. And I'm believing that this session will go to the further heights. ये सेशन जब शुरू हुआ था, मतलब जब मेरे को बोला कि आपको पहला स्पीकर बनना है इस सेशन के अंदर, और जो टॉपिक है वो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि हम स्टार्ट करेंगे एकदम प्रोग्रामिंग के वेरी बेसिक से, जो है गिट एंड गिटहब। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रख देना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है, जब तक फील ना आए ना, जब तक तुम्हें लगे ना कि भाई तुम्हारे माइंड के अंदर बात जा रही है, तब तक चैट पे पिंग करते रहना, और जब तक चैट पे पिंग करोगे ना भाई, पूरा सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। और रही बात डाउट सॉल्विंग की, डिस्कॉर्ड पे जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होने के बाद अपना स्क्रीनशॉट वहां शेयर करो। पूरा सेशन हैंड्स ऑन रहेगा, कोई थ्योरी की बात नहीं होगी। थ्योरी की बात होगी बिल्कुल जरा सी, लेकिन ज्यादातर सेशन में हैंड्स ऑन लेने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से अगर सबको लग रहा है कि स्टार्ट करा जाए, तो अगर चैट पे जोश दिखा दो यार अपना, मतलब अगर चैट पे अगर जोश दिख गया तो भाई स्टार्ट कर सकते हैं अपन फुल ऑन धमाके के साथ। एक बार चैट पे गाइस, अगर मेरी आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है एकदम मस्त तरीके से। कूल कूल कूल, ऑसम ऑसम ऑसम, नाइस यार। चलो दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले ना, मैं तुम्हें एक इमेजिनेशन में ले जाना चाहता हूँ। जो जब जहां पर भी हो तुम, जहां जिस भी जगह पे हो ना, अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। आप बोलोगे भैया आप ये क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो हम आंखें बंद कर ले? मैं बोलूं कर लो यार, क्यों कर लो? कर लो भाई। जब तुम कोविड से पहले का जो एरा चल रहा था, उस टाइम जब तुम थे, याद करो वो दिन। सोच लो कल तुम्हारा एग्जाम है, और एग्जाम किस चीज का है? एग्जाम है गिट एंड गिट हब का एग्जाम है। तुम्हें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता, लेकिन कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम कैसे करोगे? तो याद करो उस दोस्त को भाई, जिसने एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें आके सब कुछ पढ़ाया था। इमेजिन करो भाई, दोस्त, कोई ना कोई तो दोस्त होगा जिसने एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें आके पढ़ाया था,
वही दोस्त आज मैं तुम्हारा होने वाला हूं इस सेशन के अंदर। एक एक पॉइंट टू द प्रिसाइज, कुछ ज्यादा फालतू की चीज नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कम नहीं, लेकिन जितना प्रिसाइज है, जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इस लेक्चर में डिलीवर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यहां तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए सेशन ना इंटरेक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो बहुत सारे सेशन होंगे, लेकिन इस सेशन में चाहता हूं कि जितना मैं चैट के साथ इंटरेक्ट करूं, जितना ज्यादा आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक बार चैट पे गाइस आप स्पैम कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। यूट्यूब पे भी मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, एक बंदे ने कहा हिंदी इज मदर लैंग्वेज। यस ब्रो, हिंदी से वो कनेक्शन आ जाता है ना, वो फील आ जाता है भाई। जब तो वो फील नहीं आएगा ना दोस्त दोस्त का, भाई वो सीन नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने हिंदी से शुरू करा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं गिट एंड गिट हब को सीखने का अपना सिलसिला। तो इस सीखने के सिलसिले के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई, गिट एंड गिट हब नाम की हमें कोई चीज नहीं पता। मान लो भाई नहीं पता है यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई ये गिट एंड गिट हब नाम की कोई चीज होती है। तुम इस दुनिया में एकदम नए जन्म ले लियो भाई। अब तुम सोच रहे हो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं यार गिट एंड गिट हब। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा तुम्हें पूछना चाहिए अपने आप से कोई भी चीज पढ़ने से पहले, वो है व्हाई आर यू स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। तुमने गिट एंड गिट हब स्टार्ट करा पढ़ना, लेकिन तुम पढ़ क्यों रहे हो यार। अगर तुम्हें यही समझ में आ गया ना तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, तो तुम फोड़ दोगे भाई, तुम फोड़ दोगे। मैं लिख के ऐसे तुम फोड़ दोगे, ये तुम्हें अगर रीजन पता चल गया वाई। अच्छा, मैं चैट पे एक बार रिस्पॉन्ड दिखना चाहता हूँ कि भाई हम गिट एंड गिट हब पढ़ क्यों रहे हैं यार। एक बार चैट पे जिसको जो प्रीवियस नॉलेज है ना भाई, जितना जिसमें पढ़ रखा है, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो भी बिल्कुल बिगिनर पे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो भी बिल्कुल प्रो लेवल पे चल रहे होंगे, बट यहाँ पे मैं एकदम बिगिनर से शुरू करके ऑसम एकदम नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला हूँ। सो एक बार बता दीजिए कि गिट एंड गिट हब हम क्यों आया भाई। एक ने लिखा वर्जन कंट्रोल, या जूम पे किसी ने लिखा वर्जन कंट्रोल। ओके, वर्जन कंट्रोल तो बात की बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई व्हाई आर वी यूजिंग दिस, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस, व्हाट्स द थिंग मैन। Okay, some people are saying speak in English. Yeah, bro, I will try to do this in bilingual if it's possible. So don't worry, you will definitely get all the things. So basically here I'm asking you, why are we studying this Git and GitHub? What's the main thing? एक बार चैट पे आप लिख दीजिए थोड़ा सा। ओके, बहुत सारे लोग लिखे हैं कि सर आइडिया नहीं है, सर फ्री होस्टिंग करता है, ये सब करता है। ओके, मतलब आप सबके बहुत ही मिक्स्ड रूटीन टाइप के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे सिंपल सा बात बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी की तरह हम सुनते हैं इस चीज को, ठीक है। स्टोरी एक इमेजिन करते हैं, सपोज 4 फ्रेंड्स हैं, वो चारों फ्रेंड्स बहुत पहले के टाइम पे गए हैं, बहुत पहले का, सपोज जब गिटहब नाम की कोई चीज नहीं होती थी, वर्जन कंट्रोल नाम की कोई चीज मार्केट में थी नहीं यार, ठीक है। 4 फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स के नाम क्या है, 4 फ्रेंड्स के नाम है हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद, लेकिन यहाँ पे सबकी पसंद निर्मल नहीं है भाई। ये 4 फ्रेंड्स है, हेमा, रेखा, जया, पुष्पा, लेकिन यहाँ सबकी पसंद निर्मल नहीं है। सबकी पसंद क्या है, सबकी पसंद है कोडिंग करना, सबकी पसंद है डेवलपमेंट करना। इन चारों को एक ना क्रेजी आइडिया है। क्या क्रेजी आइडिया आया, इन चारों को आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, हमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट बनाना चाहिए जिससे हम कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। देखो बेसिकली हम सब एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी एजुकेशन वो कम्युनिटी तक रीच नहीं कर रही है, जब तक हम उस सोसाइटी तक मचा नहीं रहे हैं ना, तब तक ना फील तुम्हें आने वाला है ना मुझे आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली वो 4 लोग थे। कौन कौन फ्रेंड्स के नाम बताओ, हेमा, रेखा, जया, पुष्पा, ये 4 लोग थे। अब इन चारों लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ओके, तो कंट्रीब्यूट करने का यहाँ पे स्टेप आ गया। लेकिन यार उन लोगों के सामने ना बहुत सारी मुश्किलें आ गई, क्योंकि उस टाइम तो वर्जन कंट्रोल नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती थी, लेकिन मुश्किलें आ गई यार। अब एक बार हम देख लेते हैं मुश्किलें क्या आ गई यार, ऐसा क्या सीन हो गया कि भाई इनको, कि हमें ये चीज डेवलप करनी पड़ी। सबसे पहली मुश्किल गाइस चार्ट में लिखो इन लोगों को क्या हुई होगी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक ही जगह पे काम करना है। सबसे पहली मुश्किल क्या हुई होगी इन लोगों को जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। चैट पे एक बार आप लिख दीजिए, कम्युनिकेशन, कोडिंग, प्लेटफॉर्म। ओके, एक बार यूट्यूब पे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। यूट्यूब पे भी जिसको मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी, बट okay, so basically I'm here asking that what's the main thing that they are feeling that they are not able to compete with, they are not able to find the solution for this, they are having some problems to contribute in the group. So what are these problems? I'm just asking this thing. Okay, some people are saying difficult to revert previous version of code after bad update. Okay, yeah, मतलब बहुत सारे लोग बहुत नजदीक तक पहुंच गए और मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम, बिल्कुल एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा, एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूंगा, सबसे पहली प्रॉब्लम जो उनको हुई है ना, वो ये हुई है भाई, 4 लोग हैं, अपने अपने घर पे रह रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो यार, अगर उन चारों को एक ही जगह पे काम करना है, एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो मतलब चारों को एक साथ तो आना पड़ेगा ना। अब चाहे वो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, चाहे वो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन एक साथ तो आना पड़ेगा ना। तो एक साथ आ रहे हैं वो, यानी कि ये पे एक प्रॉब्लम होगी। अब सपोज किसी का मन कर रहा है कि मैं रात के 12 बजे कोडिंग करूं, किसी का मन कर रहा है नहीं मैं तो 10 बजे करूंगा। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ गई? सबसे पहली प्रॉब्लम, एक काम करिए, कॉपी अगर लीजिए तो एक नोट डालिए वहां पे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आप लिखिए, द प्रॉब्लम्स, सॉरी, व्हाई गिट एंड गिटहब, व्हाई गिट एंड गिटहब, और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट डालिए टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन कैसे? अरे भाई, जब तक हम, अगर ऐसा हम कुछ सिस्टम ला दें कि वो 12 बजे कोड कर पा रहा है, वो 10 बजे कोड कर पा रहा है, साथ में मिलकर सब कोड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज नहीं होने वाली। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टीम कोलैबोरेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? देखो, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? कोई आइडिया, किसी को कुछ आइडिया वाइडिया है? पहला तो चलो ठीक है, टीम कोलैबोरेशन हो गया, और बहुत सारे लोग क्या भी रहते हैं कि सर टीम कोलैबोरेशन, सर सिंक वगैरह। अच्छा, एक ने लिखा यहाँ पे, कौन है ये, एक बार नाम मैं बोल देता हूँ। मतलब एक ने लिखा है, दे डिफिकल्टी इन हैविंग सिंक्रोनाइजेशन। यस, मतलब सिंक्रोनाइजेशन कैसा मैं बोल रहा हूँ, सपोज वो ना, सपोज 4 लोग हैं, वो 4 फंक्शन बना रहे हैं, इसने बनाया फंक्शन F1, इसने बनाया F2, इसने बनाया F3, इसने बनाया F4। अब ना वो उसने नेहा सोच रही कि मैं रात को 11 बजे F1 बना लूंगी। उसी इंस्टेंस पे वो भी सोच रही है, एक और फ्रेंड सोच रही है उसकी कि यार मैं भी F1 बना लेती हूँ, क्या पता दूसरों ने नहीं बनाया हो। लेकिन यहाँ पे एक सीन क्या हो गया? सीन ये हो गया यार, उसने भी F1 दोबारा लिख दिया और इसने भी दोबारा F1 लिख दिया, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, वेस्टेज ऑफ सब कुछ हो गया, टाइम भी गया, कोडिंग दोबारा से मेहनत सब चली गई। तो दूसरा जो पॉइंट है ना, वो है कॉन्कोरेंट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मतलब अगर गिट एंड सोर्स नहीं होगा हमारे पास, तो कॉन्कोरेंट डेवलपमेंट, मतलब एक ही कोड पे, एक ही डेटाबेस पे सब कुछ नहीं हो पाता। देयर इज अ सीलिंग फैन नॉइस। ओके, अच्छा, मैंने थोड़ा माइक पास कर लिया, एक बार आप क्लियर कर दीजिए। अब तो नहीं आ रही ना ऐसी आवाज? सीलिंग फैन नॉइस किसने बोला था? ओके, इट इज ओके, ओके, नो सर, नो सर। हाँ, अच्छा, यूट्यूब पे भी किसने लिखा? रोहित चौधरी, मेंटेन ब्रांच सो दैट ऑल कैन सी ईच अदर चेंजेस। यस यस, ये तो है ही एक पॉइंट, ये तो है ही एक पॉइंट, लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट था वो है क्या? वो है कॉन्करेंट डेवलपमेंट। एक ही हमारे पास कोड है, उसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन को दिखाना कि मतलब कि अभी ये फंक्शन F1 ये लिख रही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया कॉन्करेंट डेवलपमेंट। जो तीसरा जो पॉइंट है सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, वो है 4 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन। क्या 4 क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार किसी ने कोड करा, किसी ने कोड लिखा, कब लिखा? व्हेन शी राइट्स द कोड। दूसरा पॉइंट, व्हाट, मतलब उसने ऐसा कोड में क्या लिखा, मतलब हमें एक मैसेज देना पड़ेगा, व्हाट शी राइट इन द कोड, व्हाट इज द मैसेज ऑफ हर आफ्टर राइटिंग दिस कोड। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? व्हाई शी राइट्स द कोड। और जो फोर्थ पॉइंट हो गया वो हमारे पास हो गया व्हेन, मतलब किस इंस्टेंस पे, एट व्हाट टाइम शी राइट्स द कोड। तो 4 क्वेश्चन के आंसर अगर हमें मिल जाए तो बहुत सही रहेगा यार। मतलब बहुत अच्छे से हम कोलैबोरेटिवली किसी चीज को बना पाएंगे। ठीक है, और जो एक बार क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए, मैं ज्यादा फास्ट जाना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट अब तक क्लियर हो चुके होंगे। पहला पॉइंट था टीम कोलैबोरेशन, दूसरा पॉइंट था कॉन्करेंट डेवलपमेंट, तीसरा पॉइंट था व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई। 3 पॉइंट्स हो गए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा, वो है डिजास्टर रिकवरेबिलिटी। क्या मतलब है? अच्छा, सपोज जो नेहा है ना, मतलब वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिजास्टर आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजास्टर आते हैं, कुछ पता नहीं है यार कब कब आ जाए। तो उसका उसका सबको सिस्टम रखा हुआ है, उसका सिस्टम रखा हुआ है। तो फिर एक क्या हुआ, बहुत तेज कुछ आंधी वांधी आई, उसके सिस्टम सब कुछ क्रैश कर गया, उसका सब कोड गया, सब कुछ गायब, उसकी पूरी मेहनत गायब, खत्म ना, मतलब सब कुछ खत्म। तो क्या बच बच क्या गया? मतलब बेचारे लोग, वो लोग अपना कोलैबोरेटिवली काम करने वाले थे, लेकिन एक का पूरा कोड ही गया, अब दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट है डिजास्टर रिकवरेबिलिटी, कि भाई ऐसी सीन आ जाए, कुछ ऐसी आपदाएं आ जाए, कुछ ऐसे डिजास्टर्स आ जाए, तो हम उनको मेंटेन कर सकें। तो ये 4th पॉइंट हो गया डिजास्टर रिकवरेबिलिटी। तो जो मेन 4 पॉइंट्स है वो हो गए हमारे पास टीम कोलैबोरेशन। अच्छा, यहाँ पे चैट में लिख दो,
वो 4 पॉइंट्स मैंने क्या बताया, व्हाट आर द 4 पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेशन दैट व्हाई वी शुड हैव टू यूज गिट एंड गिटहब। चैट पे एक बार लिख दीजिए, स्पैम कर दीजिए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ किस किस को क्लियर हो चुका है। कांट हर्ट द फोर्थ पॉइंट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट जो मेरा ये था वो था डिजास्टर रिकवरेबिलिटी। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज नेहा इज लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर इज सो मच ऑफ डिजास्टरस थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल earthquake can come so instantly and all this kind of things can happen very instantly. Now one day what happened that some disasters came and her system crashed, all the code vanished away, all the code went away, so all these things went away. So this is the fourth point, that disaster recoverability should be there. Okay, या ओके, सबने स्टार्ट भी कर दिया लिखना कि मतलब जूम पे बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि ये सही 7 पॉइंट्स हैं। देखो सबका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा ना यार, 258 लोग दे रहे हैं यार, आंसर बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्या मतलब ऐसे बोरिंग सा लग रहा है यार? मतलब बोरिंग सा लग रहा है तो बता दो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हम कर सकते हैं बीच में, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं हम बीच में, क्योंकि मैं पहले रैप वगैरह बहुत करता था और लिखता भी था यूट्यूब पे, आप मेरे देख भी सकते हैं। क्या पता मैं बीच में मेरा मूड बने तो मैं रैप ही कर दूं, अगर ऐसा लगे कि सर बहुत बोर हो रहा है, सर दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो स्टार्ट कर देते हैं अपन, कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके ओके, टीम कोलैबोरेशन, सबने सब कुछ लिखते, सब कुछ लिखते, बहुत सही बहुत सही। यार यूट्यूब पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्या? यूट्यूब पे देख लेता हूँ मैं, चलो यूट्यूब पे। ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है जूम पे कि हाँ ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब इन 4 पॉइंट्स को करने के लिए हमारे पास जो सीन में, जो पिक्चर में जो सीन आया, वो आया वर्जन कंट्रोल सिस्टम नाम की एक चीज। अभी मैं ना गिट पे गया हूं ना गिट हब पे गया हूं, अभी मैं एक पॉइंट पे आया हूं, उसका नाम है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VSC। अपने नोट में डाल लीजिए, टू टैकल ऑल दीज पॉइंट्स द वर्जन कंट्रोल सिस्टम केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है देखो। अच्छा, मुझे एक बार चैट में बता दीजिए दैट व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कैन यू गाइस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट इज VSC। अगर किसी को आइडिया हो पहले से कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये होता है। ओके, आई गेस बहुत सारे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं। टीम कोलैबोरेशन, ओके ओके ओके, tracking files to track the versions and all of this kind of thing. We say to keep track of different version. Yeah, एक ने सही पॉइंट पकड़ लिया, मतलब बहुत सही। वैसे तो सबका ही पॉइंट एकदम सही है, एग्जैक्ट जा रहा है। सेम विद अपडेशन कंडीशन, यस। तो वही सीन है। क्या हुआ है, 4 लोग थे, नेहा, सुषमा, जो भी 4 लोग थे, मतलब ठीक है। इन चारों ने क्या करा, एक वर्जन 1.2 बनाया। अब वर्जन 1.2 बनाया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च कर दिया भाई, अब क्या करें? अब बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि आप अपना UI चेंज कर लो, थोड़ा यहाँ पे मेंटेन कर लो, ऐसा कर लो। ठीक है, जब वर्जन कंट्रोल सब पूरा हो गया तो एक नया वर्जन आया जिसका नाम था 2.2। उन्होंने सबका फीडबैक लेके एक नया वर्जन, after taking the feedback from so many people, they have just created the next second version, and that is the version 2.0. Now this 2.0 version has some bugs, बहुत सारे bugs थे उसके अंदर। अब जैसे ही bugs आए ना, अब यार वो चाहते हैं कि हम हम दोबारा उसी इंस्टेंस पे चले जाए जहां से हमने शुरू किया था। हम दोबारा 1.0 पे पहुंचना चाहते हैं, हमें मतलब नहीं है 2.0 को हम बाद में देख लेंगे, अभी हम 1.0 पे जाना चाहते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए शुरुआत हुआ था वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। ये पूरा यहाँ से बेसिक था। अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर we will discuss more about Git and GitHub, the thing that you have come to study here, and after all of this we will also do some practical implementation part. अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स पे गाइस रिस्पॉन्ड कर दीजिए, बहुत सही रहेगा। यस, ओके ओके, यस सर, क्लियर है, बहुत सही, बस एक नंबर। सर जी आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा भाई, अच्छा बताओ यार, कम आ रही है क्या यार? यूट्यूब पे कोई लिख रहा है आवाज कम आ रही है। यार मेरे ख्याल से यूट्यूब पे थोड़ा लैग भी कर रहा है, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, आई थिंक सम बैंडविड्थ इशू वाज देयर। स्पिट ओके, परफेक्टली ऑडिबल बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, परफेक्टली ऑडिबल बोल रहा, चलो ठीक है, ओके कूल, नाइस। हाँ, तो सबने मैंने लिख दिया कि यहाँ तक सबको वर्जन कंट्रोल सिस्टम तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं गिट और गिटहब की। ठीक है, एक कॉपी में नोट डालिए, गिट एंड गिटहब। देखो मैं बिलीव करता हूँ कि पावर पॉइंट से मतलब बहुत कम पढ़ा हूँ,
मतलब बहुत कम एंगेज करूं, जितना ज्यादा हो सके फेस टू फेस इंटरेक्ट कर लूं, क्योंकि जितना ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्ट होगा मेरे ख्याल से माइंड में उतनी जल्दी चीजें बैठेंगी, और अगर बैठेंगी तो धमाल मचाने के लिए आप रेडी हो। दिस इज व्हाट आई नो। सो इज दिस क्लियर, है ना? अब मैं शुरू करने वाला हूँ गिट एंड गिट हब के बारे में, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं यहाँ पे। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके कूल कूल, नाइस नाइस। अब मैं शुरू करता हूँ गिट एंड गिट हब। अब देखो, गिट और गिट हब को ना लिंक मत, ये मत समझ लेना कि ये दोनों एक ही चीज है, नहीं। गिट और गिट हब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो गिट है ना, जो गिट है ना, वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट। मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम की एक टेक्नोलॉजी है गिट, ठीक है? और गिट क्या है? जो गिट है वो होता है केवल लोकली। लोकली मतलब केवल तुम बिना इंटरनेट के अपने लोकल सिस्टम पे ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। क्या सब कुछ ट्रैक कर सकते हो? जो मैंने 4 पॉइंट बताए, ये सब तुम ट्रैक कर सकते हो लोकल सिस्टम पे, ठीक है? तो गिट क्या है? गिट एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने लोकल सिस्टम पे, अगर आपको ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए थे उन सबका ट्रैक रखना है तो गिट यूज होता है। बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो गिट है ना वो केवल लोकल सिस्टम पे चलता है। गिट जो है वो केवल लोकल सिस्टम के लिए है। अभी ठीक है, ये बात समझ लेना कि जो गिट है वो एक लोकल सिस्टम के लिए है। यहां तक क्लियर है तो प्लीज बता दीजिए। उसके बाद मैं गिटहब पे जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत आगे निकल जाऊं और बहुत सारे लोग भी ऐसा बोलते जाएं। अच्छा रिपीट, कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट रिपीट, ठीक है, मुझे पता थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करता हूँ बताने की। कोशिश करता हूँ। देखो जो गिट है ना, गिट क्या है? सपोज गिट जो है ना, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप है, ठीक है? आपके पास लैपटॉप है, आपने क्या करा? आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया। एक तरीके से उसमें सॉफ्टवेयर है, या आपने इंस्टॉल कर लिया। गिट एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। किस चीज का सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। क्या ट्रैक करता है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीज ट्रैक करता है। बस एक एक चीज है जो गिट है ना, वो केवल लोकली चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप गेम खेलते हो ना, GTA 5 वगैरह, जीटी बहुत पहले जब GTA वाई सिटी हम खेला करते थे, जब बचपन में बहुत खेला करते थे, तो इंटरनेट तो था नहीं। तो उस टाइम क्या होता था, हमने एक बार अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया, तो मतलब जो लोकली हमारे सिस्टम के अंदर, अब ऐसा तो नहीं हम कोलैबोरेटिवली खेल रहे हैं, नहीं, उस टाइम नहीं हुआ करता था ऐसा। तो वैसे गिट अभी भी केवल लोकली आप उसको यूज कर सकते हो, बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सा चीज है। अगर ये क्लियर है तो मेरे ख्याल से हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर इतना क्लियर है तो मेरे ख्याल से बता दीजिए। जिसको इतना सा भी डाउट है ना यार, स्पैम कर दो, स्पैम कर दो भाई। आई एम रेडी, मतलब कुछ भी हो भाई, एक बिगनर भी हो ना भाई, सबको स्पैम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है, क्लियर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं गिट हब की। अब मैंने क्या बोला, जो गिट था वो हम ट्रैक कर रहे हैं लोकली, लेकिन अगर मैं बात करूं यार, एक काम करते हैं ना, हम लोकली की जगह क्लाउड पे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। क्लाउड मतलब इंटरनेट पे, जैसे गूगल ड्राइव होता है। हम इमेजेस वैसे तो लोकली भी रखते हैं, लेकिन अगर हमने क्लाउड पे रखना शुरू कर दिया तो कितना ज्यादा सही रहेगा, हम दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं फोटोज वगैरह। सेम विद गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब कुछ नहीं है, आप अपने कोड को, अपने फोल्डर्स को आप डायरेक्टली कहाँ रख सकते हो? आप डायरेक्टली क्लाउड पे रख सकते हो। जो गिटहब है वो बस एक होस्टिंग सर्विस है जो कि आपको रेपोजिटरीज को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना क्लियर है? गिटहब केवल लोग होस्टिंग सर्विस है, एक वेबसाइट है जिसका काम क्या है? जिसका काम है आपके फोल्डर्स को स्टोर करना क्लाउड पे। वंस मोर, ओके, गिटहब एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बोला ना, गिट रेपोजिटरी क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी देखो सब क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, गिट, गिट क्या है? गिट बेसिकली आप लोकली अपने सिस्टम के अंदर सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? ये सब हो गया लोकल, लेकिन याद रखना लोकली, ठीक है? गिटहब क्या है? गिटहब आप उस, अगर लोकली जो काम लोकली होता है, अगर उस काम को आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दो, उस काम को आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दो, ये तुम्हारा लोकल सिस्टम है, ये तुम्हारा क्लाउड आया, तुमने क्या करा, इस फाइल को उठा के क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, मतलब बाकी लोग भी अब एक्सेस कर पा रहे हैं उस चीज को। तो यही काम है गिटहब का। अब मार्केट में केवल गिटहब जैसी चीज नहीं है, बकेट हब है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने रेपोजिटरीज को स्टोर कर सकते हो। एक ने क्वेश्चन पूछा था कि रेपोजिटरीज क्या होती है? देखो, रेपोजिटरी कुछ नहीं है, तुम्हारा फोल्डर यार। फोल्डर, तुमने फोल्डर बनाया, सपोज एक प्रोजेक्ट का नाम लिखा, तुमने प्रोजेक्ट नंबर 1, तुम्हारा फोल्डर बन गया ना। और फोल्डर के अंदर तुम्हारी बहुत सारी फाइल्स हैं, वो फोल्डर तुम्हारी रिपोजिटरी है। बस ऑनलाइन तो मतलब जो गिटहब की दुनिया है, उस दुनिया में फोल्डर को बोलते हैं रिपोजिटरी। सिंपल है। क्लियर हो गया इतना? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
अच्छे से क्लियर है ना भाई, अच्छे से अगर क्लियर है तो स्क्रीन को लाल कर दो। स्क्रीन को लाल करने का मतलब समझ रहे हो? स्क्रीन को लाल करने का मतलब है मतलब दिल 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 बना दो, मतलब स्क्रीन ऐसा मुझे दिखना चाहिए कि भाई रेड हो गया, एकदम रेड रेड सा हो गया है, खूनम खून कर दो अगर स्क्रीन अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो। ओ भाई, ओ भाई, हाँ भाई, सही में लाल हो गया। अरे तो भाई काफी गजब यार, एक नंबर, ऑसम ऑसम ऑसम, नाइस नाइस। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिए कि गिट एंड गिट हब क्या होता है। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, बस इतना ही थ्योरी पार्ट था, ज्यादा मैं थ्योरी पार्ट कराने वाला। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको टास्क बता देता हूँ कि हम क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, 1 मिनट, 1 मिनट, वेट अ मिनट। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो, होस्ट हैज डिसेबल्ड योर पार्टी, सर कैन यू प्लीज गिव मी द परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन। होस्ट, होस्ट कौन है? I'm not able to present my screen if permission दे सकते हैं। Nilesh sir, please give him permission to present his screen. तो मतलब गिट एंड गिटा मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा देखो, एक बात बताता हूँ। जो देखो, अब हमारा जो पूरा मेन फोकस है ना, वो फोकस रहेगा गिट को पढ़ना, और लोग मतलब क्लाउड पे हम कैसे अपलोड करेंगे अपने कोड को वो देखना, और लास्ट में हमारा जो मोटिव है वो है एक मेगा प्रोजेक्ट। उस मेगा प्रोजेक्ट पे आप सब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आज के आज करोगे, और वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कोई प्लेन टेक्स्ट नहीं है, प्लेन टेक्स्ट नहीं है, याद रखना। एक बार मैं आपको थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए ना वो व्यू दिखा देता हूँ यार, जो मैंने प्रोजेक्ट थोड़ा सा बनाया था आप लोगों के लिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड host has disabled. I think they haven't given me the permission yet. क्या मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एक बार परमिशन मुझे दे दीजिए थोड़ा। Just a minute. ओके। तो दोस्तों मतलब मैंने मतलब कल बैठा था यार, कल मैं रात को बैठा था, मैंने रात को नहीं परसों बैठा था, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे ना ऐसा एंगेजिंग फील हो कि लगे यार हमने ओपन सोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करा है। देखो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत तरीके हैं। एक तरीका क्या है भाई, सिंपल, तुम्हारे पास एमटी फाइल होती है, .mt मतलब टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें तुम अपना नाम डाल देते हो और तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारा ओपन सोर्स हो गया। लेकिन वो फील नहीं आया ना उसके अंदर, फील नहीं आया। फील कब आएगा? जब तुम प्रॉपर कोड के अंदर एडिट करके उसको पीआर भेजोगे। पीआर सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें फील आएगा, और फील दिलाना ही मेरा यहाँ पे कोशिश है कि मैं फील दिलाऊं। अगर फील आ गया ना, देन तुम मतलब आज मैं बता रहा हूँ, आज इस सेशन के बाद ना तुम जाते ही भाई गेट और गिटहब को भाई तुम ऐसा एक्सप्लोर करने वाले हो ना कि भाई मजा ही दिला दूंगा भाई, कोई सीन नहीं है यार एकदम। और मजा ना आए ना भाई, अगर तो हाँ एक बात हो यार, बीच में ऐसा लगे ना भाई बहुत बोर हो रहे हैं, मुझे बता देना भाई, क्योंकि बहुत कुछ फन करेंगे यार अपन, ठीक है? ये कोई वैसी वैसी क्लास नहीं कि भाई कुछ भी चल रहा है, बहुत फन करने वाले हैं अपन, फुल ऑन फन के साथ पढ़ेंगे। वैसे मैंने बोला था ना एग्जाम से एक दिन पहले वाला सीन था कि मतलब कल तुम्हारा एग्जाम है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसा दोस्त वाला जो कनेक्शन था ना भाई, वो ही रखने वाले हैं अपन, ठीक है? एकदम पूरा कंट्रीब्यूशन के साथ करेंगे। कोई सर जी राह अरे भाई वो बाद में, थोड़ा एक बार रुक जाओ यार, अगर मैं थोड़ा इनको वो बता दूं। हाँ फोड़ देंगे भाई, फोड़ना तो है यार, फोड़ने के लिए तो आए हैं भाई। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है क्या? अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो यार वही सब सीन करना है। चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा शुरू करता हूँ, जब तक पता नहीं मेरे को कब मेरे को परमिशन मिलेगा स्क्रीन शेयर करने का, जब तक मैं थोड़ा बताता हूँ। दो तरीके हैं तुम्हारे पास। क्या दो तरीके हैं? देखो, तुम विंडोज चलाते हो, तुम मैक ओएस चलाते हो, तुम लिनक्स चलाते हो, ठीक है? लेकिन कोडर्स वाला फील कहाँ आता है, हैकर वाला फील कहाँ आता है भाई? हैकर वाला फील आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसमें तुम सब कुछ कमांड लाइन पे जब टाइप करते हो ना, जब तुम्हें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ती है, तुम सब कुछ कमांड लाइन पे टाइप करते हो, उसमें फील आता है, टर्मिनल पे फील आता है कि हाँ यार तुम मुझसे कोडर हो। फील आता है कि नहीं आता भाई? बता दो। कि विंडोज में फील आता है, विंडोज पे ज्यादा कि तुम यार माउस से वहां पे जा रहे हो, उस फोल्डर पे जा रहे हो, क्लिक करा, ये सब किया, वो सब किया, ये सब होता रहेगा। उसे फील आता है कि भाई वो टर्मिनल पे आता है भाई, हाँ यार फील आ रहा है कि सर भाई फील आ गया, फील आ रहा है, तो भाई टर्मिनल फील आता है। लिनक्स इज बेस्ट भाई, लिनक्स तो बेस्ट है, लिनक्स ओपी हो जाए भाई, लिनक्स ओपी हो जाए भाई, एक बार चैट पे ना ओपी तो कर दो यार एकदम, मतलब आग लगा दो भाई पूरे भाई।
हाँ भाई लिनक्स ओपी होना चाहिए था यार, क्योंकि भाई लिनक्स ओपी है ही यार, वो सही बता रहा हूँ, कोडर्स के लिए वही बना है यार। विंडोज में क्या है यार फालतू में वहाँ, अब क्या मेरे विंडोज यार वो बात अलग है, या मेरा वो सिस्टम है, लेकिन ऐसा सिंह बता रहा हूँ कि बाकी आजकल सब में ये सब आता है तो इसलिए ठीक है। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ यार कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ। अनुराग आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई स्क्रीन टिल नाउ, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू बट हाँ तो मतलब लिनक्स में ओपी मैक कैसा है कोडिंग के लिए? भाई मैक भी देखो एक बात बताओ, तो जो मैक है ना वो लिनक्स बेस्ड होता है, ठीक है। जो विंडोज है ना उनका भी अलग ही सिस्टम है, लेकिन जो मैक्स है वो भी एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है। तो मतलब वो एक तरीके से तुम्हें लिनक्स वाला फील दे देगा, क्योंकि जो आप तुमने देखा होगा बहुत सारे जो कोडर्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर मैक यूज करते हैं, क्योंकि मैक में ना तुम्हें फालतू में इंस्टॉल करके नहीं करना पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, तुम डायरेक्ट टर्मिनल पे गए, तुमने लिखा जो भी कमांड देते हैं उसके अंदर कमांड दिया, तुमने लिखा इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा लिनक्स बेस से ही। तो भाई मैक तो भाई वैसे मैक मोस्ट ऑफ द जनता यूज करती है, लाइक जिनको मिक्स्ड अप चाहिए कि हाँ यार वो कोडिंग भी करते हैं और वो ये सब भी करते हैं, तो मैक वगैरह यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट है वो, कुछ नहीं है। बाकी तो भाई लिनक्स लिनक्स तो है ही अपना, लिनक्स तो भाई सीन ही है वही अपना, है ना। एक बार हेलो आविद। हाँ अब मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, थैंक यू सो हाँ मच। ओके। गाइस अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए गाइस। एक बार मैं चार्ट नहीं कर पढ़ पा रहा यार, एक बार चार्ट को मैं कैसे लाऊं? वेट अ सेकंड। ओके आर्टिस्ट चैट्स, ओके कूल, चैट्स भी आ गए हमारे पास अब, और क्लियर है स्क्रीन, स्क्रीन एब्सोल्युटली क्लियर, कूल। लेट मी, अरे मेरा वो कहाँ गया यार, लेट मी फाइंड माय पेन। ऐसा बहुत बार होता है यार, जब तुम जिस चीज को चाहते हो ना वो तुम्हें मिलता नहीं। अब देखो मेरा वो पेन नहीं मिलेगा यार, क्या ही सीन है भाई। अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया, डोंट वेरी गाइस, यही मतलब मिल गया, मेरे को मिल नहीं रहा था, यही नीचे पड़ा हुआ था पेन को थोड़ा सा ना। शानदार है स्क्रीन भाई, शानदार, क्या यार अब जैसा भी है भाई झेल लेना बस, ठीक है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिया, हम एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। हमने पॉइंट्स पढ़ा, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, अरे मेरी राइटिंग को क्या हो गया है। अ, सबसे जो पहला पॉइंट है ना वो मैंने बताया था कि वाई गेट एंड गिटहब। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। बस मेरी बातों पे तुम चले जाना, मेरी राइटिंग पे मत जाना वो बात अलग है यार, थोड़ी राइटिंग अजीब सी है, बट फिर भी झेल लेना। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था वाई गेट एंड गिटहब। गेट एंड गिटहब के अंदर हमें से 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, वो सारे पॉइंट्स आपको वो वॉइस लो, चलो ठीक है थोड़ा सा माइक और पास लगाता हूँ, वो सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। हमने जो दूसरा सी देखा था, दूसरा हमने चीज देखा था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम पिक्चर में आया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम से गिट पिक्चर में आया, गिट के बाद से हमारे पास गिट हब पिक्चर में आया। हमने इन सब के बारे में भी देख लिया। अब जो हमारा जो मेन टास्क है वो हमारा है हैंड्स ऑन सेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है हैंड्स ऑन सेशन। हैंड्स ऑन सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला है कि हम तुम जब भी तुम कंट्रोलर भी तुम्हें ऐसा काम करना है, सपोज गिट जैसा काम, तो तुम 2 जगह पे कर सकते हो। एक हो गया तुम्हारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा तुम्हारे पास हो गया GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे ग्राफिकल में क्या है, हेलो हाँ जैसे ग्राफिकल में क्या है, ग्राफिकल में तुम्हें सब कुछ एकदम बॉक्स मतलब एक यूआई के साथ तुम्हें दिखेगा कि अच्छा अब तुम्हें इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन हम ग्राफिकल से पढ़ेंगे नहीं भाई, फील नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे कमांड लाइन इंटरफेस से, एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस से पढ़ने का एक रीजन और है, वो रीजन है कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है ना, कमांड लाइन इंटरफेस सर्वर साइड में भी मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें सर्वर साइड में कुछ मतलब कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो तुम सर्वर साइड पे तुम्हें केवल कमांड लाइन मिलेगा, वहाँ पे GUI अवेलेबल नहीं होता। तो एकदम मतलब शुरू से ही तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए तुम शुरू से ही स्टार्ट करना कमांड लाइन पे, GUI के चक्कर में मत पड़ना, पहले बता रहा हूँ, बहुत मतलब फिर थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो कमांड लाइन से हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारे पास है ना वो क्या है, मैंने क्या बोला था, गिट और गिटहब अलग चीज है। तो सबसे पहले एक काम करें, क्या मैंने बोला था, गिट एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे सिस्टम पे लोकल इंस्टॉल हो जाता है, क्या हम इसको इंस्टॉल कर लें क्या यार? इंस्टॉल कर लें क्या भाई? इंस्टॉल कर दे तो भाई चैट में बता दो भाई, इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए आज मेरे ख्याल से। एक बार मैं फुल ऑन स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा सुनो, सब लोग अपने टैब पे जूम छोड़ के गूगल क्रोम का टैब खोल लो, गूगल क्रोम का टैब खोल लो, और फिर अपन शुरू हो जाते हैं फुल ऑन के साथ, ठीक है। गूगल क्रोम का टैब खोल लो। सबसे पहले जो लिंक है ना वो तुम्हें जाना है, तुम्हें सर्च करना है गिटहब डाउनलोड, सॉरी गिट गिट डाउनलोड, गिट डाउनलोड, ठीक है।
और गिट डाउनलोड में जाते ही तुम्हें सबसे ऊपर वाली लिंक मिलेगी, इस पे तुम एंटर हो जाना। मेरी स्क्रीन विजिबल तो है ना, बता दो एक बार यार। आई डोंट नो, यूट्यूब पे भी चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ यूट्यूब पे तो विजिबल है। गिट डाउनलोड के ऊपर जाने के बाद तुम गिट डाउनलोड्स पे जाए, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज, मतलब तुम्हारा मैक होगा तो मैक आ जाएगा, विंडोज होगा विंडोज आ जाएगा, लिनक्स पे करो तो लिनक्स पे तो भाई वैसे ही इनडायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्टली भी करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे तुम डाउनलोड पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे तुम डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे वो अपने आप ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइक 47.8 MB का सॉफ्टवेयर है। आई डोंट नो व्हाट्स योर इंटरनेट स्पीड, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं सब लोग डाउनलोड पे लगा दो। थोड़ा मैं वेट कर लूंगा अगर ऐसा कुछ डाउनलोड की थोड़ी स्पीड कम हो रही होगी, लेकिन सब कुछ जिसका सेटअप नहीं है ना वो सबसे पहले ये फाइल डाउनलोड कर ले। हम पहले गिट को लोकली सेटअप करने वाले हैं। तो डाउनलोड पे अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भाई करो ना, किसका वेट कर रहे हो यार। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई फिजिकल क्लास चल रही है कि मैं तुम्हारे सिस्टम पे आऊंगा तुम देखो भाई तुमने डाउनलोड किया कि नहीं किया, भाई स्टार्ट कर दो यार। मैथ्स में बैकलॉग लग जाए तो क्या करें भाई, मैथ्स में बैकलॉग लग जाए तो उसको वो करो ना यार, क्रॉस करो, बैकलॉग लग जाए वैसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने आप हो जाएगा। बस तुम एक बात बताता हूँ भाई, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अभी तुम पता एक्सप्लोर करना, तुम ऐसा मत पकड़ना कि तुमने एक ही टेक्नोलॉजी पकड़ के तुम बैठ गए, ऐसा मत करना भाई। तुम अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हाथ आजमाना, तुम वेब पे हाथ आजमा रहे हो, तुम मशीन लर्निंग पे जा रहे हो, तुमने हर सब कुछ देख लिया, सब कुछ देखने के बाद अब तुम डिसीजन ले रहे हो कि यार मैंने तो सारी टेक्नोलॉजी देख ली, अब मैं ये मेरे मतलब का है। लेकिन जो गिट एंड गिटअप है ना भाई, वो है ओवरऑल यूनिवर्सल है, मतलब तुम कोई भी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, गिट एंड गिटअप का तो नाम आने ही वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जैसे मेरे सिस्टम में ये डाउनलोड हो चुका है और मैं ओपन करूंगा इसको। अब देखो मेरे में वैसे पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ओपन करा, यस कर देना। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, बस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कुछ जैसे इंस्टॉल आ जाए तो इंस्टॉल कर देना। अब मैं इंस्टॉल दबा नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल है वो। इंस्टॉल कर लेना। अगर इंस्टॉल स्टार्ट मतलब डाउनलोड, पहले बताओ डाउनलोड होगा सबका, किस किस का डाउनलोड हो चुका है और किस किस का नहीं हो ये भी बता दो, कितना रह रहा है ये भी बता दो। डाउनलोड हो चुका है, जिसका डाउनलोड हो चुका है ना वो सेटअप पे नेक्स्ट नेक्स्ट जाके इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ जब तक थोड़ा सा। यूट्यूब पे डाउनलोडिंग नहीं हुआ, डाउनलोडिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ये भी तो बताओ यार, क्या नहीं हुआ। 40% भी नहीं, हाँ कोई टाइम लो यार, आराम से, कोई सीन नहीं है। देखो तुम्हें मतलब ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे यार सेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ तो रेस्ट्रेंट नहीं है ना यार कि मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है कब तक चलेगा, पर जब तक चलेगा ना भाई फील तो लेना पड़ेगा यार। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि बाद में हम थोड़ा पोस्टपोन कर सके, लेकिन लेट्स सी क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। डन। अच्छा इंस्टॉल भी हो गया, बहुत लोगों का इंस्टॉल हो गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। Setup is not complete. Yes, I want to exit the setup because I've already installed it. तो जैसे ही सबका सेटअप अगर कंप्लीट हुआ होगा, इट्स आस्किंग फॉर डिफॉल्ट एडिटर। यस कर दो, मतलब ऐसा कुछ है, अरे वो सब तुमने सेटिंग्स पे अगर करना है तो सबको नेक्स्ट करना है, मतलब कोई सीन नहीं है। डिफॉल्ट एडिटर है तो यस कर दो उसको भी, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। डन। अच्छा ठीक है, जिसका डन हो गया ना भाई वो क्या करे, वो अपने सिस्टम पे जाए। सिस्टम पे छोड़ो, पहले गिट गिट बश पे गिट उस पे जाएंगे। जैसे तुमने इंस्टॉल कर लिया ना, ये एक नया टर्मिनल जो गिटहब आपको टर्मिनल देता है, जो टर्मिनल है वो लिनक्स बेस्ड टर्मिनल है। तो विंडोज पे होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, लेकिन जो गिट बैश है, जैसे तुमने गिट इंस्टॉल किया होगा तुम्हारे पास ये वाला टर्मिनल डाउनलोड अपने आप हुआ होगा। एक बार एक टर्मिनल डाउनलोड हुआ है तो एक बार ओपन कर लो इस टर्मिनल को। अगर एक टर्मिनल डाउनलोड हो चुका है तो एक बार ओपन कर लीजिए। क्या सबको इंस्टॉल तो हुआ है ना टर्मिनल, एक बार चार्ट में रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और जिसका नहीं हुआ डाउनलोड वो बता दीजिए थोड़ा सा, जिससे मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूँ। डन, ओपन, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट लेवल ओपन, ये टर्मिनल इंस्टॉल। अच्छा इसका इंस्टॉल हो गया ना टर्मिनल, उसको चेक करना है कि मेरा सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कमांड लिख दो सबसे पहले, गेट वर्जन। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जो वर्जन है, जो भी तुम्हारे पास वर्जन है वो पता चल जाएगा कि जैसे मेरा थोड़ा पुराना वर्जन होगा 2.29.2 विंडोज 0.1, तो ये मेरा वर्जन है। अब जिसका जो भी वर्जन होगा, वर्जन 2.23, अच्छा बहुत लोगों ने भाई चला भी लिया भाई, बहुत सही यार, एक नंबर, सब कुछ करके बैठो यार, प्रो लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल।
गेट वर्जन एक काम करता हूँ मैं, पता है, हाँ एक काम करो, पता है जो एक बार एक बंदा एक काम कर सकता है क्या, सपोज जो भी मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा ना, या फिर चलो मैं ही लिख दूंगा, लेकिन जो भी मैं कमांड करूंगा ना, चैट में भी तुम कॉपी पेस्ट करके, या फिर रुको मैं ही कर दूंगा यार, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो स्पैम हो जाएगा, उसका स्पैम हो जाएगा वो। पुनीत कह रहा है मैं कर रहा हूँ, हाँ एक बंदा करे, कोई भी ऐसा ना हो कि 10-20 बंदे करने बैठ जाए, मतलब एक बंदा करे, इसे स्पैम वगैरह ना हो। पुनीत द्विवेदी कर रहा है तो वही करता है, ठीक है, पुनीत द्विवेदी करता रहेगा, ठीक है। गेट वर्जन ये कर लिया क्या सर? नहीं हो रहा सर, क्या नहीं हो रहा भाई, बताओ तो सही। ये रिस्पॉन्ड कर दो कि क्या नहीं हो रहा, मैं ये जान सकता हूँ। गेट वर्जन अदर चैट इज नॉट विजिबल टू यू, अदर चैट हो गया सर। पुनीत अगर तुम मैसेज करो ना तो तुम एवरीवन के उस पे करना, ठीक है, होस्ट एंड पैनलिस्ट पे मत करना, एवरीवन पे करना। सर टर्मिनल क्या सर, टर्मिनल हाँ, गेट बैश सीएमडी ओपन मत कर लेना, सीएमडी ओपन मत कर लेना, ये ओपन नहीं करना तुम्हें, ये ओपन नहीं करना तुम्हें ओपन करना है गेट बैश। डिफरेंट, अरे वर्जन कुछ भी हो यार, वर्जन से मतलब नहीं है, ऐसा आ गया ना गिट वर्जन लिखा आ गया ना, काम खत्म भाई, यही चाहिए हमें। मैं बस पैनलिस्ट को ही कर सकता। अच्छा तुम पैनलिस्ट को कर सकते हो, ओके, तो मैं ही यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड, मैं ही करता रहूंगा किसी नहीं। ये लो, ये एक कमांड था जो मैंने यहाँ पे सबको वो कर दिया। नहीं आ रहा वर्जन, डिस्कॉर्ड पे सब है ना, डिस्कॉर्ड पे सब लोग है ना, डिस्कॉर्ड पे अगर सब लोग हैं तो अपना जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हो चुका होगा, या फिर जिनको पहले इशू पहले आ चुका होगा, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे वहीं पे हैंड टू हैंड, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे स्क्रीनशॉट भेज के हैंड टू हैंड सॉल्यूशन दे दो, डिस्कॉर्ड का लिंक दे दो, डिस्कॉर्ड का लिंक, एक मिनट, 1 मिनट, let me go to my DSA marathon, please share the Discord link। भाई डिस्कॉर्ड पे तो आ जाना चाहिए यार, अब तक डिस्कॉर्ड पे नहीं आए तो बात कैसे, कोई नहीं है डिस्कॉर्ड के लिंक पे, डिस्कॉर्ड के लिंक मैंने कहाँ दी था, ये लो गाइस, डिस्कॉर्ड के लिंक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी एक्साइटमेंट बनाने के लिए मैं तुम्हें फाइनल प्रोजेक्ट जो हम एकदम समझ रहे हो जिसमें तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने वाले हो, तो मैं बता देता हूँ। तुम्हारे बैच में से कुछ लोगों ने मेरे साथ कल किया था, मैं थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, कुछ लोग कल कर चुके हैं, एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है वो। So guys, this is the thing that you will gonna contribute on this platform. DSA मैराथन कम्युनिटी, ये मैंने परसों ही डिजाइन किया इसका इंटरफेस वगैरह। इसमें क्या होगा ना, जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उसका कार्ड क्रिएट होता जाएगा, तो वॉल ऑफ फेम यहाँ पे बनती जाएगी। दूसरों के साथ कनेक्ट हो, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी को सपोर्ट करो, यही इस पूरे कम्युनिटी का मेन टास्क है, मेन मोटिव है। मेरे ख्याल से फील आया कि नहीं आया इसको देख के भाई, मतलब डीएसए मैराथन कम्युनिटी, समझ रहे हो, इसमें तुम्हारा कार्ड होगा खुद का, लाइक फॉर एग्जांपल ये सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद यहाँ पे इनका कार्ड आ रहा है, अब वो कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो सब हम एक बार देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे मैं यूट्यूब पे नहीं गया यार बहुत टाइम से, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, 1 मिनट, ओ समझ सब बढ़िया भाई, एक नंबर यार, कुछ मेरे दोस्त भी आगे चैट पे ठीक है, 1 मिनट, कहाँ गया मेरा, हाँ इसको तो हाँ, तो इस पे हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये किस किस का हो गया है, मतलब गिट वर्जन, मतलब जिसको डाउट था वो डाउट पूछ लेना, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा थोड़ा वेट करूंगा ना तो भाई बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से सेशन रिकॉर्डेड भी है यूट्यूब पे, तो आप वापस एक बार बैक ट्रैक करके यूट्यूब पे जाकर थोड़ा समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। जैसे गिट वर्जन यहाँ पे लिखा, आप सबसे पहले ना मुझे गिट हमने यहाँ पे लिख दिया, आप सबसे पहले ना लिंक इज एक्सपायर्ड, अब मेरे ख्याल से ग्रुप पे तुम्हारे शेयर हो जाएगी, जो भी तुम्हारा अनऑफिशियल वगैरह ग्रुप है ना, जो मॉडरेटर्स वगैरह होंगे सब शेयर कर देंगे, ये सब देख लेना है, ठीक है। तो अब जो मेरा जो मेन सीन है ना यहाँ पे वो ये है कि हमने गिट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब हमें गिट को बताना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिट को अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि यार मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मुझे आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी।
यस या नो, मतलब पहले किसी ने किया तो पहले आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और उस आइडेंटिटी देने का कोड क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी का पता क्या चलेगा कि आइडेंटिटी दी है कि नहीं। सब एक बार ये कमांड चला के देखो, ये वाला कमांड चला के देखो, गेट कॉन्फिग लिस्ट, गेट कॉन्फिग लिस्ट, ये वाला कमांड चला के देखो एक बार। जैसे यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यूजर नेम जैसा मेरे को आपको हाईलाइट हो रहा होगा, यूजर नेम आवेग गुप्ता, और जैसे यूजर ईमेल जैसे मेरे कॉलेज के ईमेल यहाँ पे डाल रखा है aveg.gupta@indoreinstitute.com। तो यहाँ पे मेरे पास इस गेट के पास मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर तुम यही कमांड एक बार चलाओगे अपने सिस्टम पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम चला सकते हो तो चलाओ, ये लो मैंने भेज दिया है, चैट पे भेज दिया मैंने जूम के, एक बार सिस्टम पे चलाओ, तुम्हें यहाँ पे बताएगा, तुम्हें फैटल एरर, अगर ऐसा कुछ एरर्स आ जाएगा कि नहीं यार तुम्हारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास तुम्हारी आइडेंटिटी है, पहले आइडेंटिटी तो दो। तो आइडेंटिटी देने के लिए हमें दो चीजें देनी है आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी के अंदर मुझे क्या दो चीजें देनी है, पहला चीज मुझे देना है नेम, और दूसरा चीज मुझे देना है ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब इसका कोड क्या है, इसका कोड है यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है, यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल, मतलब अच्छा, इसमें कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है, ऐसे कॉपी होता है इसके अंदर, याद रखना, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। गेट वर्जन इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपका भी गेट ना इंस्टॉल नहीं हुआ है, एक बार आप गेट इंस्टॉल कर लो, मतलब आयुषी, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वरना आप डिस्कॉर्ड पे भेज दीजिए, डिस्कॉर्ड पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसको पहले से ऐसा आ चुका होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, मतलब ये आपको देना है। यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना नेम दे दोगे, सपोज मेरा नाम आवेग है तो मैंने क्या करा, आवेग मैंने दे दिया, ठीक है। सिमिलरली आपको भी ये अपना नाम देना है। मैं यहाँ पे चैट में कॉपी कर रहा हूँ ये कोड, योर नेम की जगह बस आप अपना नाम डाल के ये कमांड रन कर लीजिए, पहला स्टेप। ये जैसे ही हो जाए, मतलब अगर सपोज मुझे 15 लोगों का रिस्पॉन्ड आ गया कि अगर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, योर नेम की जगह योर नेम मत डालना, अपना नाम डाल देना। सर वी कैन ऐड मोर देन वन ईमेल एड्रेस, आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे ख्याल से वो ओवरराइट कर देगा, अगर आप दूसरा ईमेल एड्रेस दोगे भी तो वो ओवरराइट कर देगा उस चीज को। डन सर, टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड्स, डन, ओके कूल। जिसको भी हैंड रेज करना है चैट पे लिख दो यार, एक बार आप चैट वगैरह पे लिख दो, ठीक है। आपने ये लिख दिया ना, अब दूसरा जो हमारा जो कोड लिखना ना, वो मुझे लिखना है गेट कॉन्फिग यूजर नेम योर ईमेल। बस आप इस ईमेल की जगह ना आप अपना ईमेल डाल देना, ठीक है। सेम कमांड आपको रन करना है, कहाँ गया मेरा गिट, सेम कमांड आपको रन करना है, बस इसकी जगह आपको क्या डालना है, योर ईमेल की जगह आपको डाल देना है अपना ईमेल एड्रेस। जैसे आपने नेम डाला था ना, बस यहाँ पे योर ईमेल की जगह अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, ये काम खत्म हो, यही काम होते ही ना यू आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। ये जिसका हो जाए ना, एक बार चैट पे रिस्पॉन्ड कर देना प्लीज। डन, ओके, नाइस, डन, ऑसम, अमेजिंग, काफी सही आ रहा है। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा ना, कोई फील आ रहा है ना भाई, फील आना चाहिए यार, ऐसा नहीं हो कि भाई कितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता यार कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, पर देख लेता हूँ मैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे थे यार, चलो हैं अभी 200 के लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो डन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डन कर रहे हैं, तो मतलब आपने ये सब कर लिया, करके देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने कमांड बोला था ना, वही मैं कमांड एक बार चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा, गेट कॉन्फिग लिस्ट। ये एक बार आप भी चला लो, आपका ईमेल एड्रेस ऐसा बीच में आना चाहिए, अगर बीच में आ रहा है ना, देन यू आर गुड टू गो। जैसे ये वाला जो कमांड था ना, गेट कॉन्फिग लिस्ट, इसके ऊपर चला लो आप अपने सिस्टम पे। अगर ऐसा हो गया, कंट्रोल V, अगर ये हो गया है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिटहब सेटअप हो गया आपके पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, डन। अच्छा, गेट कॉन्फिग लिस्ट चला लेना तुमने, उसमें तुम्हारा नेम और मतलब नेम और यूजर नेम आ रहा है, डन विद गेट कॉन्फिग लिस्ट। बहुत सही, अमेजिंग, कूल, नाइस, डन, ठीक है। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके थोड़ा बैक कर लीजिए, वहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसे। डन, बहुत सही यार, काफी अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बहुत सही, ठीक है। आई एम गेटिंग ओनली नेम नॉट जीमेल।
अच्छा ऐसा कुछ दिक्कत है तो मगर ईमेल वाला जो कोड है ना गेट कॉन्फ़िग मेल वाला, वो अगर तुम दोबारा एक और रन कर लो तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि एरर उस टाइम आ गया हो जिसका जीमेल लिस्ट अप नहीं हो रहा। सर ईमेल के लिए क्या डालना है? भाई ईमेल के लिए वही डालोगे ना तुम, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस है वही डालोगे। सर अंडरस्कोर सी क्या, अरे एक्चुअली क्या होता है ना, सी कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे कुछ चीज कॉपी करता हूँ ना, कॉपी करता हूँ तो जैसे कंट्रोल सी दबाता हूँ ना वो अपने यहाँ पे कमांड बन जाता है, वो कुछ नहीं है, जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ तो वो अपने आप आ रहा है। सर कमांड वापस दे दीजिए। कमांड वापस दे दूं? ठीक है मैं कमांड वापस दे देता हूँ और इन तीनों कमांडों को आप एक बार रन कर लो तो बहुत सही रहेगा। ये कमांड भी मैं यहाँ पे कॉपी करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैं कमांड दे देता हूँ, अरे मैं काम करता हूँ ना, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड लिखा और मैंने आपको भेज दिया। आई होप कि मिल गया होगा। एक एक करके अलग अलग कमांड यहाँ पे वो डालना एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सबके पास ये चीज वो हो गया है। देखो पेस्ट, कुछ लोग कह रहे हैं सर पेस्ट नहीं हो पा रहा होगा। देखो पेस्ट करने के लिए आपको जो कमांड है वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट की एक की होती है, इंसर्ट की होती है। अगर आप इन दोनों को दबाओगे तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा, आपको लिखने की टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिफ्ट प्लस इंसर्ट इन गिट बैश, दिस इज द कमांड दैट यूज्ड टू कॉपी द कोड इन द सिस्टम। गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम एक्सेस, हाँ ऐसा पुनीत बता भी था साथ ही साथ। ठीक है ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपने पहला स्टेप पहला जो मंजिल होता है ना भाई वो एकदम सीढ़ी पे रख चुके हो आप। अब नेक्स्ट मैंने करो चलते हैं, अगर कमांड फिर से यूज करें डिफरेंट नाम के साथ। अच्छा अगर ये कमांड तुम डिफरेंट नाम के साथ यूज करोगे ना तो वो ओवरराइट कर देगा उसको, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा ईमेल एड्रेस दूंगा तो उसको ओवरराइट कर देगा। हाँ ओवरराइट कर सकते हो, लाइक दोबारा से कमांड चला दो ओवरराइट हो जाएगा, वो कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से थ्योरी पे आ जाता हूँ। थ्योरी पे आके एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, नहीं थ्योरी से आने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू समथिंग, मतलब कुछ भी कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, डीएसए मैराथन करके बनाया। सब लोग साथ साथ करना, सब लोग साथ साथ करना। सर कमांड नॉट फाउंड बता रहा है। देखो अगर तुम्हें कमांड नॉट फाउंड बता रहा है ना तो उसका मतलब ये है कि तुमने गिट जो है वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तुम दोबारा से एक बार गिट इंस्टॉल करो एंड आई थिंक दिस विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली। अगर तब भी नहीं हो रहा है देन जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट इन द डिस्कॉर्ड सर्वर, देयर आर सो मेनी मॉडरेटर्स हु कैन हेल्प यू, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु लिटरली कैन हेल्प इन दिस सेशन। सर ईमेल चेंज करना, हाँ ईमेल चेंज करने के लिए मैं बता दिया ना, दोबारा से कमांड को एक बार आप दोबारा से दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल इसको ओवरराइट कर देगा तो वो ईमेल चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दोबारा से वही दे दो, नया ईमेल डाल के हो जाएगा, कोई सीन नहीं, ठीक है। बहुत सही, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रैंडमली कोई, अब जैसे मैंने बोला ना मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है, चेक तो करना पड़ेगा ना। चलो डेमो कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसा फोल्डर बना लो, कोई ऐसा फोल्डर से बना लो, कुछ भी रैंडम सा फोल्डर बना लो और यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट फाइल, कुछ भी कोई सी भी फाइल, जरूर नहीं कि टेक्स्ट फाइल। मैं टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, लेटर सपोज टेक्स्ट फाइल मैंने ले लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ले लिया, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सपोज मैंने 4-5 कॉपीज की पेस्ट कर ली है, ठीक है। देखते जाना है, एक एक स्टेप देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाओ। जिस फोल्डर पे तुमने यहाँ पे कॉपी करा, टेक्स्ट फाइल्स बनाई है, जिस भी फोल्डर को तुम्हें गिट करना होता है, शिफ्ट दबा के तुम राइट क्लिक दबाओगे तो तुम्हें यहाँ पे आएगा गिट बैश हियर। याद रखना शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाना है, देन इट विल शो गिट बैश हियर। तो मैंने गिट बैश को यहाँ पे किया और जैसे मैंने गिट बैश को यहाँ पे किया तो मेरा ये फोल्डर के अंदर गिट बैश खुल गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो चीज है ना भाई, एक कमांड जो आपको रट जाना चाहिए वो कमांड है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस, गिट स्टेटस भाई, मंत्र का जाप करो भाई गिट स्टेटस का मंत्र का जाप करो भाई गिट स्टेटस का। लेकिन हाँ ये कमांड ऐसा है कि भाई जो मोस्टली तुम यूज करते रहोगे, ठीक है। वंस मोर गिट स्टेटस, क्या वंस मोर बताना था कि जो मैंने बताया कि क्या करना है अभी, एक बार दोबारा सुन लो जिसको नहीं सुन में आया। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर बनाओ, जिसको फोल्डर को तुम्हें सपोज क्लाउड पे तुम्हें डालना है, एट दैट तुम्हें क्लाउड पे डालना है। इस फोल्डर पे तुम गए, इस फोल्डर पे जाकर तुमने रैंडमली फाइल, सपोज तुम्हारी कोडिंग फाइल्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें इसको क्लाउड पे डालना है। अब डालने के लिए मेरे पास तो गिट है ना, मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक जैसे दबाया मैंने, यहाँ पे आ गया गिट बैश हेयर। जैसे ही मेरे पास गिट बैश हेयर आया, यहाँ पे मेरा गिट बैश हेयर यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, मैंने किया गिट, मैंने क्या मैंने किया गिट वर्जन, सॉरी गिट वर्जन गिट स्टेटस, आई एम सॉरी, गिट स्टेटस। जैसे मैंने गिट स्टेटस दबाया वो बताएगा
फेटल नॉट अ गिट रेपोजिटरी। इसका क्या मतलब है? गिट्स, मैंने फोल्डर बनाया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन मेरे को बता रहा है फेटल, दिस इज नॉट अ गिट रेपोजिटरी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिकली, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है, एक मिनट रुकना बस, क्या प्लीज सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। ओके, मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या करा, मैं एक फोल्डर बनाया, मैंने DSAM नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने रैंडमली कोई 5 फाइल्स, कुछ भी बना लो, चाहे 2 फाइल बना लो, 3 फाइल बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 5 फाइल बना ली। ये 5 फाइल तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा कोड है, यहाँ पे तुमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और भी जो तुम सपोज मशीन लर्निंग के कोड वगैरह लिखते हो, उसको तुम्हें क्लाउड पे डालना है, जिसको तुम शेयर कर पाओ, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे फाइल्स तुमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब तुमने क्या करा, जैसे तुमने फाइल्स क्रिएट कर ली, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाना, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक। जैसे तुम ये करोगे तो तुम्हें गिट बैश हेयर मिलेगा, और जैसे तुम्हें मिलेगा तो सबसे पहले जो कमांड तुम्हें डालना है वो डालना है गिट स्टेटस। जैसे ही तुम गिट स्टेटस डालोगे तो तुम्हें आएगा फेटल, दिस इज नॉट अ गिट रेपोजिटरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई गिट हमसे बोल रहा है, दोस्त मेरे, भाई मेरे, जो तुमने जो फोल्डर बनाया है ना, मेरे को पहले डालो तो सही फोल्डर के अंदर। मैं जब तक आऊंगा नहीं, मैं जब तक तुम्हारे फोल्डर के अंदर आऊंगा नहीं, तब तक मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब हमें उसको डालना पड़ेगा। तो मतलब गिट बोल रहा है ना हमसे, मैंने क्या बोला, गिट हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे उस फोल्डर के अंदर इन कर लो। किसके अंदर इन कर लो? उस फोल्डर के अंदर इन कर लो। गिट मुझसे बोल रहा है, मुझसे उस फोल्डर के अंदर इन कर लो। ऐसा? अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं एक कमांड देता हूँ, उसका नाम है गिट इन इट। मैंने बोला भाई गिट इन इट, भाई गिट इन इट, इसमें आ जाओ तुम। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने गिट इन इट बोला, मैंने यहाँ पे एंटर करा, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो जो गिट इनिट नाम का जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो हिडन है, वो हिडन है, लेकिन तुम्हारे इस रेपोजिटरी में आ चुका है। जो गिट इनिट है वही वही एक ऐसी फाइल है जो तुम्हारे पूरे कोड को ट्रैक करेगा। लाइक तुमने कब चेंज किया, कहाँ चेंज किया, इसका पूरा ब्यौरा, हर एक कमिट का पूरा जो पिक्चर होता है ना, वो सब उसके अंदर सेव करेगा वो। जैसे मैंने गेट इनिट किया, अब अगर मैं गेट स्टेटस करता हूं तो मुझे बताता है ऑन ब्रांच मास्टर। इसको बाद में बात करेंगे। ब्रांच मास्टर कह रहा है ब्रांच तुमने बना दिया जिसका नाम है मास्टर। अभी तुमने कुछ भी कमिट नहीं करा, 4 फाइल्स तुम्हारे अभी इस एरिया में पड़ी हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि सारी चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, इतना सबने कर लिया, जिसका भी डाउट था मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा। अब जो नया चीज है ना भाई, अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप बार बार सुनोगे, सुनते ही रहोगे मेरे ख्याल से। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, आज क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो भाई तुम यूट्यूब पे चले जाओ दोबारा से क्लैरिफाई कर रहे हो। अगर अभी दिक्कत है ना तो अभी यहाँ चैट पे बोल देना, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन चल रहा है, यहाँ पे कोई सा सीन नहीं चल रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे 3 स्टेजेस बनाए ना। तो ये 3, इसको बोलते हैं 3 स्टेजेस इन गिटहब। 3 स्टेजेस इन गिटहब। मैंने 3 स्टेजेस बनाई। अब हर स्टेज के बारे में एक एक करके मैं एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरेटिकल मुझे ना आता है, ना मैं चाहता हूं कि आप भी थ्योरेटिकल करें। दिल से दिल की बात तब होगी जब दिमाग से दिमाग जुड़ेगा, और दिमाग से दिमाग तब जुड़ेगा जब भाई जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, वो आपके पिक्चर में अगर आपके आ गई, आपकी खोपड़ी में, आपके भेजे में अगर वो बात उतर गई, देन यू आर गुड टू गो। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। स्टार्ट करूं मैं पढ़ाना 3 स्टेज गिटहब। अगर स्टार्ट करूं तो एक बार बोल दो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, मतलब ऐसा चैट पे लिख दो कि भाई स्टार्ट करो। हम सब लिखने के लिए रेडी बैठे हैं, एकदम बहुत सही से लिखने वाले हैं। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। अरे अरे क्या हुआ भाई ये? अच्छा ठीक है, स्टार्ट। बहुत सही यार, एक नंबर एक नंबर, जहर भाई जहर। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने बोला हूँ गेट 3 स्टेज गिटहब, 3 स्टेज गिटहब था। अब स्टार्ट करते हैं। गिटहब की 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस का नाम है, सबसे पहली जो स्टेज है वो लिख लेना आप एक कहीं, उसका नाम है वर्किंग। अरे मेरी राइटिंग कितनी गंदी है यार। इसका नाम है वर्किंग डायरेक्टरी।
वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, इसका नाम है वर्किंग डायरेक्टरी। ये स्टेज नंबर 1 होगी। स्टेज नंबर 2 जो होता है वो मेरा होता है स्टेजिंग एरिया। लिखते चलना, ठीक है, सब लोग लिखते चलना। ये होता है स्टेजिंग एरिया। और जो थर्ड होता है ना वो होता है मेरा गेट डायरेक्टरी। गेट डायरेक्टरी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 3 बस नाम, मुझे अब तक मैंने नाम बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया। 3 क्या स्टेज होती हैं? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और गेट डायरेक्टरी, ठीक है। इतना मतलब इतने नाम सब मेरे ख्याल से सब नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सब चीज को, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है? वर्किंग डायरेक्टरी को लेमन भाषा में समझ लेना, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। क्या दिख रहा है सर? दिखने का क्या मतलब है सर? दिखता हूं मैं, पूरा कंप्यूटर है अपना, हमारे सामने 10 फोल्डर खुले हैं, वो दिख रहे हैं हमें अपने। दिखने का क्या मतलब है सर? क्या बताना चाहते हो कि भाई बताओ तो सही, आवेग ब्रो बताओ तो सही यार, दिखने का क्या मतलब है? मैंने बोला देखो, तुमने जो फाइल यहाँ पे बनाया, DSAM नाम का जो फाइल तुमने बनाया, यहाँ पे जो 5 फोल्डर, जो 5 फाइल्स बनाई है, पूरा फोल्डर जो तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा 5 फाइल के साथ, इसको मैं बोलूंगा वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर है पिक्चर? ये पिक्चर क्लियर है तो बोलते यस क्लियर है। अगर वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर है देन रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स दैट यस इट इज क्लियर। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो एक बार रिपीट मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है? बहुत सही। हाँ, जो दिख रहा है वो डायरेक्टरी, अब दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जिसमें हमने गेट इनिट किया है और उस गेट रेपोजिटरी का जो मुझे पोर्शन दिख रहा है वही मेरा हो गया गेट, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। सेकेंड स्टेज होता है मेरा, वो होता है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। स्टेजिंग एरिया, अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है? मैं ना तुम्हें एक एनालॉजी के साथ इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। एकदम रियल वर्ल्ड थोड़ा चलना, इमेजिनेशन करना। मैं भूल रहा हूँ कि भाई हम कोडिंग करने हैं, हम एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आ गए, ठीक है। बॉस, सपोज करो तुम्हारे घर आ गए रिलेटिव्स। अब उनको तुम्हें ना भाई कुछ देना है यार, मतलब कुछ खिलाना तो पड़ेगा। तुम क्या करो, तुम सुपरमार्केट गए। अब सुपरमार्केट में देख रहे हो यार, तुम्हें इतना सारा सामान मिल रहा है, इतना सारा सामान तुम्हें दिख रहा है यार, ये भी सामान है, वो भी सामान है, इतना सारा सामान। तो जो इतना सारा तुम्हें सामान दिख रहा है ना, वो क्या हो गया मेरा? वो हो गया वर्किंग डायरेक्टरी। पिक्चर क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम सुपरमार्केट में गए, तुम्हें इतना सारा सामान स्टॉक पे स्टॉक दिख रहा है, वो सारा क्या हो गया? वो सारा सीन हो गया वर्किंग डायरेक्टरी। ये एनालॉजी क्लियर हुई? वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हुई वर्किंग डायरेक्टरी की? अगर डायरेक्टरी की पिक्चर क्लियर हो तो यस लिख दो कि मतलब जो दिख रहा है। दिखने का मतलब क्या है? मैं अगर सुपर मार्केट पे गया तो जितना ही मुझे स्टोर में सामान दिख रहा है वो मेरा हो गया वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। बहुत सही, ये सब क्लियर हो गया। स्टेजिंग एरिया क्या होता है? तुमने क्या करा, तुमने कार्ट पकड़ी, जिसमें तुम शॉपिंग मॉल की जो कार्ट होती है, तुमने कार्ट पकड़ी। उसके अंदर तुमने जो जो तुम्हें सामान चाहिए, केवल जो इंपॉर्टेंट सामान है, जो तुम चाहते हो कि हाँ यार ये मैं अपने रिलेटिव को खिलाऊंगा आज, तो मैं वो लेना चाहता हूँ, तुमने क्या करा? वो सारा सामान अपने कार्ट में डाल लिया। अब जो तुमने कार्ट में सामान डाला है ना भाई, वही है मेरा स्टेजिंग एरिया। अभी मैं इसको कंप्यूटर से भी लिंक करके बता दूंगा, लेकिन स्टेजिंग एरिया का फील आ गया ना, सुपरमार्केट की कार्ट, वही तुम्हारा स्टेजिंग एरिया है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। देखो पिक्चर अगर क्लियर है ना तो तुम हर चीज को समझ जाओगे, वरना तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। स्टेजिंग एरिया क्या है मेरा? स्टेजिंग एरिया बेसिकली मेरी कार्ट होगी। बहुत सही। अब गेट डायरेक्टर क्या होता है? अब फाइनल तुम गए शॉपिंग काउंटर के उस पे, शॉपिंग काउंटर पे उस पे भी तुमने देख रहे हो यार, मैंने इतना सारा सामान तो ले लिया, लेकिन यार ये तो मैंने फालतू में उठा लिया। ऐसा होता है ना कि यार हम गए हैं एक रैक से, सपोज 2 की जगह 4 हमने चिप्स के पैकेट उठा लिए, मैगी के पैकेट कलेक्ट करे जा रहे हैं, मतलब चॉकलेट उठा ली। लेकिन जब हम वहां पे गए, हमने देखा यार बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है यार, क्या करें। थोड़ा सा सामान उठाया, ये लो भाई हमें नहीं चाहिए, ले लो वापस ले लो। तो मतलब उसमें से भी थोड़ा कम सामान कम हुआ। जब तुमने प्रॉपर काम कर लिया, जब तुमने प्रॉपर वो कर लिया, बिल अपना बना लिया, तुम काउंटर से बाहर निकल गए, तो जो भी तुम्हारे पास सामान लेफ्ट हुआ वो हुआ मेरा गेट डायरेक्टरी। गेट डायरेक्टरी। अगर इतनी पिक्चर क्लियर हो गई है तो एक बार मुझे चैट पे लिख दो यस सर क्लियर। यहाँ पे एक बंदे का एक का रिप्लाई है कि सर स्टेजिंग एरिया बता दीजिए। स्टेजिंग एरिया, देखो स्टेजिंग एरिया क्या है? सपोज तुम सुपरमार्केट में गए, तुमने वहां पे कोई कार्ट उठाई, कार्ट में जो तुमने जल्दबाजी मार के जो जो सामान तुम्हें उठाना था वो तुमने डाल लिया, फिर वही मेरा क्या हो गया? वही मेरा स्टेजिंग एरिया हो गया। और जब तुमने फाइनल बिल कटवाया, फिर जो तुम्हारे पास फाइनल सामान मिला, वही तुम्हारा क्या हो गया? गेट डायरेक्टरी हो गया। ये क्या था भाई? प्रॉपर रियल वर्ल्ड से। तुम पता है एक बात बताऊं, तुम कुछ भी चीज पढ़ोगे ना यार, अगर तुमने उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लिया,
तो मैं लिख के दे सकता हूँ, थ्योरी सब गई भाड़ में, तुम्हें पूरी जिंदगी वो याद रहेगी, बेशक तुम उस टाइम पे उसकी डेफिनेशन, मतलब तुम बता पाओगे कि यार ये मतलब है, तुम फील कर गए होगे अंदर से। अगर तुम फील नहीं करे ना भाई एकदम, वरना नहीं, अगर तुम फील कर गए ना उस टॉपिक को, तो एक बार दोबारा से स्क्रीन रेड कर दो भाई, मतलब मैं देखना चाहता हूँ रेड हुई स्क्रीन, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं फील, सर फील आ चुका है, आज तो फील आ गया सर, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे थे लेकिन सर फील नहीं आ रहा था, लेकिन आज थोड़ा फील आ गया भाई। तो अगर फील जिसको आया होना है, अगर तो चैट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, इस चैट पर अगर रिस्पॉन्ड हो जाए तो बहुत अच्छा सा माहौल बन जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सही, बहुत सही, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, एक नंबर, एक नंबर, अरे भाई भाई एक नंबर यार, जहर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस बस, बहुत है, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा नीचे लेवल पे आता हूँ, थोड़ा तुम्हें लिंक करके बताता हूँ कि कोडिंग एरिया में क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत सही। दोबारा से टर्मिनल पे चलते हैं अपने, दोबारा से उस फोल्डर पे चलते हैं, दोबारा से टर्मिनल पे चलते हैं। अब हर एक चीज को मैं एक एक करके बताऊंगा। ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो वर्किंग डायरेक्टरी होगी मेरे ख्याल से, आप तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे गिट बैश यहाँ पे खोला, गिट बैश जैसे यहाँ पे खोला मैंने, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला गिट स्टेटस, अब ये बोल रहा है कि ये जो भी फाइल रेड में है ना, जो भी फाइल रेड में है वो अभी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। ये नोट कर लो, कमांड लाइन पे जो भी फाइल रेड कलर से है वो अभी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, वो अभी तक मेरी स्टेजिंग एरिया पे नहीं गई, ठीक है। ये सारी चीजें रेड कलर से थी, मतलब ये सारी चीजें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, अभी तक मैंने स्टेजिंग एरिया पे नहीं भेजा। बहुत सही। अब स्टेजिंग एरिया पे भेजने के ना दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो भाई, क्या काम करोगे, तुम एक काम करो कि तुमने लिख दिया गिट एड, गिट तो देने पड़ेगा, तो मैं गिट यूज करता हूँ, गिट तो कमांड देने पड़ेगा, गिट एड, तुमने क्या करा -a, है ना। जैसे तुमने बोला गिट एड -a, तो इसका मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि जितने भी फाइल्स मेरी वर्किंग डायरेक्टरी पे पड़ी हैं उन सबको भेज दो, कहाँ पे, उन सबको भेज दो स्टेजिंग एरियाज पे। लेकिन अगर सपोज तुम्हें उन फाइल्स में से भी कुछ पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेजना है, तो तुम एक काम करो, गिट एड और उस फाइल का नाम, फाइल नेम, अगर तुम ऐसा दोगे गिट एड फाइल नेम, तो जो वो चीज है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मेरा, वो केवल वो फाइल जाएगी स्टेजिंग एरिया पे, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। गिट एड -a और गिट एड फाइल नेम, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेजना है। अगर इतना क्लियर होगा तो चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, तो मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। I don't know what's the scene is going on. चैट बॉक्स पे, हाँ पुनीत ने कोड भी कर दिया, यस सर क्लियर, यस सर, यस सर, डन डन डन, रिपीट, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो रिपीट से मेरा मतलब ये है, देखो मैंने बोला अगर तुम्हें अपनी फाइल्स को, जो तुम्हारी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में रखी हैं, अगर तुम्हें उनको स्टेजिंग एरिया पे भेजना है तो तुम्हारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है गेट ऐड -a। इससे क्या होगा सर, इससे होगा कि तुम सारी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी पे भेज सकते हो, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है मेरे पास गेट ऐड फाइल नेम, मतलब पर्टिकुलर सामान मुझे स्टेजिंग एरिया पे भेजना है, मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं है, मुझे केवल पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेजना, तो मैंने करा गेट ऐड फाइल नेम, वो मैंने कर दिया। व्हाट टू डू फॉर रिमूविंग पर्टिकुलर फाइल रिमूव करने के लिए भी एक कमांड होता है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। कि सपोज आपने गलती से, सपोज एक ऐसी फाइल आपने यहाँ पे रख ली है कि जो कि आपने स्टेजिंग एरिया पे भेज दिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि नहीं आ रही, तो मुझे स्टेजिंग एरिया पे नहीं भेजना था, उसके लिए भी मैं एक बार बताऊंगा आप लोगों को, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले मुझे ये, चलो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप बता दो कि इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर तो यस यस कर दो, वरना जो अभी कृष्णा ने भाई जो पूछा उसका मैं आंसर दे देता हूँ। कि अगर सपोज करो मैंने गलती से कोई फाइल ली, और मैंने वो क्या करा, मैंने स्टेजिंग एरिया पे भेज दिया, मैंने गलती से कोई फाइल ली और मैंने वो स्टेजिंग एरिया पे भेज दिया, तो उसका जो कमांड होता है वो होता है गेट रिमूव कर दो माइनस, और यहाँ पे शायद फाइल का नाम आता है, यहाँ पे फाइल का नाम आता है गेट रिमूव कैश। अगर मैं कमांड के अच्छे से बता दूंगा क्या होता है, शायद आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग दैट आई एम लेफ्टिंग, बट गेट रिमूव माइनस कैश, इससे सपोज आपने कोई फाइल गलती से अगर भेज भी दिया है तो आप उसको स्टेजिंग एरिया पे भेज सकते हैं।
एट वंस वी ऐड 2 और मोर फाइल्स, मोर देन 2 फाइल। मतलब हाँ, तुम फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा, एक ही साथ तुमने बहुत सारी फाइल्स का नाम दे दिया, तो एक साथ तुम कर सकते हो। Where this all the files is going to which repository on Git। अभी GitHub की तो बात ही नहीं हो रही यार, GitHub की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो मैं लोकल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। GitHub तो मैंने क्या बोला था ना, GitHub कुछ नहीं है, Git को अगर तुमने क्लाउड पे डाल दिया वो GitHub है। तो इग्नोर पर्टिकुलर फाइल वी कैन, हाँ डॉट गिट इग्नोर, या दैट्स करेक्ट, गिट इग्नोर। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एपीआई कीज है, तुम्हारे पास कुछ पासवर्ड्स हैं जो तुम चाहते हो कि नहीं जाए वो स्टेजिंग एरिया पे, बाकी सब कुछ चला जाए, तो चलो मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन तब भी सुन लो। लाइक फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे एक फाइल नेम बना सकते हो जिसका नाम होता है गिट इग्नोर करके। गिट इग्नोर में तुम क्या करोगे, जो जो फाइल तुम्हें चाहते हो कि भाई जो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से वो क्लाउड पे ना जाए तो बेहतर है, जिससे बाकी लोग उसको सर्विस को ना कर पाए, उसको गिट इग्नोर पे वो सारी फाइल्स डाल दो। गिट इग्नोर काम ये करता है कि वो अपने आप सारा संभाल लेगा कि नहीं, वो ये निश्चित सुनिश्चित करेगा कि ये फाइल ना जा पाए रेपोजिटरी पे, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट तक, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो मैंने बोला ना, एक बार इसको एक प्रैक्टिकल थोड़ा करके देख लेते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बोला सपोज गेट ऐड माइनस माइनस ए, मैंने कमांड दिया, इससे क्या होगा, सारी फाइल स्टेजिंग एरिया पहुंच जाएंगी। मैंने कमांड नहीं की, तुम्हारा एंटर मारा, जैसे मैंने एंटर मारा तो हाँ मेरा, अब देखो फिर मैंने कहता हूँ गेट स्टेटस, अब मैं देखूँ भाई स्टेटस क्या फाइल, ओके अब देख रहे हो, पहले सारी फाइल्स क्या थी, रेड थी, सारी फाइल्स रेड थी, लेकिन अब सारी फाइल्स क्या हो गई, ग्रीन हो गई। जो भी फाइल ग्रीन हो गई, इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए गिट स्टेजिंग एरिया पे, वो पहुंच चुकी हैं, वो गिट स्टेजिंग पे पहुंच चुकी हैं भाई, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, गिट स्टेजिंग पे वो पहुंच गए हैं, जो जो फाइल वो पहुंच गए हैं, वो गिट स्टेजिंग पे पहुंच गए हैं। अब लेटर सपोज कि मुझे एक काम करना है कि मुझे ना दोबारा से, मेरे को सारी फाइल दोबारा से बैक ऑन द वर्किंग रेपोजिटरी में लाना, तो मैं कैसे लाऊंगा, तो उसके लिए सिंपल सा कमांड ये होता है, गेट rm माइनस 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 कैश, माइनस माइनस कैश, और क्या होता है माइनस r, ठीक है। नो पाथ स्पेस, ओके, यहाँ पे पाथ मुझे देना पड़ेगा, विच फाइल शुड बी रिमूव। तो बेसिकली यहाँ पे फाइल नेम अगर आएगा तो फाइल नेम दे देके तुम जो भी पर्टिकुलर फाइल है तुम उसको स्टेजिंग एरिया में डाल सकते हो। एक बार इसको फिर भी स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च लेना कि क्या कोड यही था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आई थिंक मिस कर रहा था मैं कुछ, एक बार देख लेना। लेकिन तुम स्टेजिंग एरिया से वापस वर्किंग पे डाल सकते हो। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने जितनी भी फाइल्स थी वो मैंने वर्किंग रेपोजिटरी पे डाल दिया, ठीक है। सर टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर दो, मेरा मॉनिटर दिख, ओके ओके नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। क्लियर है, अब क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि जितने भी फाइल्स है ना, ये सारी फाइल्स कहाँ पहुंच गए, ये सारी फाइल्स पहुंच गई मेरे गिट स्टेजिंग एरिया के अंदर। अब जो नेक्स्ट मैंने बोला था, जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेजिंग एरिया आता है वो आता है, अरे मैं वो कर दिया क्या, ओके। तो वो गया, मैं मार्कर कहाँ गया, तो जो पहला फाइल था वो था मेरा, एक मिनट यार, मार्कर, हाँ यार, तो जो पहला फाइल था गेट रीसेट हेड फाइल, अच्छा किसने लिख दिया है गेट रीसेट, हाँ कृष्णा सर ने ही बता दिया, मतलब कृष्णा सर ने खुद लिख दिया भाई। हाँ ये देख लो, ये जो इसने कोड भेजा ना, गेट रीसेट हेड फाइल, इससे करके सपोज तुम किसी रेपोजिटरी, सपोज जो तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में जो फाइल है उसको तुम वापस कहाँ भेज सकते हो, तुम वर्किंग रेपोजिटरी भेज सकते हो। कृष्णा सर ने भी लिखा है यहाँ पे, कृष्ण गोपाल पाटिल, गेट आरएम कैस्ट, हाँ जैसे जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट में कोड बता रहा था वो ये बता रहा था, जैसे अभी निशांत ने यहाँ पे, निश्चल ने यहाँ पे लिखा गेट रिमूव माइनस माइनस कैस्ट फाइल का नाम, इससे भी हो रहा है, हाँ इससे भी हो जाएगा, वो मैं बोल रहा था माइनस आर की जगह फाइल का नाम दोगे तो उससे भी हो जाएगा, बाकी जो केजी सर ने बताया उससे भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों से हो जाएगा सीन में, ठीक है। बहुत सही, अब तुमने सारी फाइल्स को तुमने कहाँ भेज दिया, स्टेजिंग एरिया पे भेज दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है ना, अब प्रोसीजर है कमिट का। क्या है दोस्तों, कमिट का। कमिट क्या होता है, एक बार कमिट को मैं एकदम फील कराता हूँ उसके बाद पूछूंगा कमिट क्या है। पहले मुझे कोई बता सकता है कमिट क्या है, एक बार कमिट क्या है मुझे एक बार बता दो। मुझे पता है कमिट तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कमिट की, एक बार मैं वो जानता हूँ, क्या पता किसी को अच्छी डेफिनेशन पता हो मेरे से, तो कुछ सही हो जाएगा। जिसको पता है वो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। अरे यार मैं यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, चैट बॉक्स पे रिप्लाई फाइनल सेव, हाँ बहुत सही यार, एक नंबर है, क्या नाम है, सेव सेव सेव, नाइस नाइस नाइस, एक नंबर है, जहर जहर, फाइनल सेव फाइनल सेव फाइनल सेव, ओके सर, can you please give example for how to add more than 2 files? Okay,
सो बेसिकली देखो, अगर तुम्हें मोर देन 2 फाइल्स को सपोज गिटहब पे डालना है तो अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज हम जैसे कोडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल थोड़ा इंप्लीमेंटेशन देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज नहीं पता। अब मैं कैसे देखूं? तो जो हम कम्युनिटी होती है ना, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनकी एक एबिलिटी और होती है कि स्टैक ओवरफ्लो पे जाकर उसका सॉल्यूशन मिल तुरंत ढूंढने का एबिलिटी। तो वो कैसे हम ढूंढने वाले हैं वो देखो। जैसे आर्ची का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड मोर देन 2 फाइल्स, तो मैंने क्या लिखा, सिंपल लिखा, हाउ टू ऐड मोर देन 2 फाइल्स इन स्टेजिंग एरिया, इन स्टेजिंग एरिया। जैसे हमने करा तो हमने क्या करा, ये मेरा पहला पहला आ गया। मैंने क्या करा, स्टैक ओवरफ्लो ओपन किया। स्टैक ओवरफ्लो पे किसी न किसी ने यहाँ पे बता दिया है कि आप इस तरीके से, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आर्ची ने बोलता है हाउ टू ऐड मोर देन 2 फाइल्स, ये दिख रहा है, गेट ऐड फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। मतलब आप एक के बाद स्पेस दे दे के फाइल का नाम दोगे ना, उससे भी फाइल आप एक साथ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका होगा। क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत बार ऐसे मन में आता है कि यार ये कैसे करें, वो कैसे करें। डायरेक्ट गूगल पे जाओ, गूगल करो स्टैक ओवरफ्लो पे, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जब आप अच्छे से प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे ना, तो स्टैक ओवरफ्लो तो आपका खुला रहेगा एक जगह। और एक मीम और चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल, किस किसने स्टैक ओवरफ्लो का होम पेज देखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो स्टैक ओवरफ्लो के होम पेज पे तो बहुत कम जाते हैं। उनको जब भी एरर आता है वो एरर को सर्च करते हैं एज इट इज, और जो उनको पेज मिलता है वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो आज खोल ही लेते हैं यार स्टैक ओवरफ्लो को, पे होम पेज दिखता कैसा है? ओ भाई, ये ऐसा दिखता है क्या यार, मुझे भी नहीं पता था। अब काफी चेंज कर दिया यार इन्होंने तो। मैं स्टैक ओवरफ्लो पर सेम से बता रहा हूँ, जब भी खोलता हूँ ना, मैं केवल एरर्स वगैरह देखने के लिए खोलता हूँ। ये सब भी है क्या स्टैक ओवरफ्लो पे यार, ये सब एनिमेशन वगैरह? स्टैक ओवरफ्लो ओपी, हाँ यार, एक बार स्टैक ओवरफ्लो ओपी कर दो, मतलब ये बहुत सही करते हैं काफी कर, क्योंकि यार प्रोग्रामर्स को बचा रहा है यार। मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट लाइन पे सब कुछ हमें बताने को जो क्षमता है वो स्टैक ओवरफ्लो पे कर रहा है। ओपी कर दो यार, ओपी हो जाना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। फर्स्ट टाइम सी इधर होम पेज, हाँ यार भाई, मतलब मैंने देखा हुआ है पहले, लेकिन उन्होंने चेंज करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं, मतलब काफी सही है यार। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग, बहुत सही, नेक्स्ट लेवल। ओपी ओपी ओपी, बहुत सही, बहुत सही, नेक्स्ट लेवल। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से ये सब समझा होगा। अब गिट कमिट, मैंने बोला था, बहुत सारे लोगों से पूछा था कि गिट कमिट कैसे क्या करते हैं, तो गिट कमिट का सीन यहाँ पे मेरा मतलब बस ये था। कमिट क्या होता है? कमिट होता है फाइनल पिक्चर। कमिट क्या होता है? कमिट होता है फाइनल पिक्चर। फाइनल पिक्चर, फाइनल पिक्चर कैसी? मतलब मैंने कोड्स लिख दिए, फाइनल पिक्चर वही सोचो ना कि सपोज जब तुमने पूरा ऑर्डर ले लिया, मतलब चेकआउट कर लिया, तो तुम्हारे पास जो फाइनल रिसोर्सेज आए वही तुम्हारा गिट रेपोजिटरी होगी, मतलब उतना ही तुम कंटेंट वहां भेजने वाले, समझ रहे हो? तो वही मेरा होता है गिट कमिट। अब जब भी मैं गिट कमिट करता हूँ ना, तो उसका जो कोड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, गिट कमिट -m। -m बेसिकली बोल रहा है मैसेज दे रहा हूं मैं, वैसे तो गेट कमिट से हो जाएगा, लेकिन -m देना एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई कमिट करते हो ना, अगर आप उसमें बता दोगे कि ये हिंट दे दो कि ये मैंने इसलिए ये कमिट इसके काम आ रहा है, तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। गेट कमिट -m योर मैसेज, योर मैसेज। अगर तुम इस तरीके से गेट कमिट कर दोगे तो जो हमारा जो गेट कमिट है वो कमिट हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। लेट्स कमिट दिस थिंग, लेट्स कमिट दिस थिंग। ओके, मैंने स्टेजिंग एरिया पे फाइल्स भेज दी। अब मैं बोलता हूँ गिट कमिट -m, और स्टेजिंग मैंने बोला कि भाई कुछ भी, सपोज फर्स्ट कमिट, ये मेरा पहला कमिट है। आप सभी लोग भी करते रहना, ठीक है? एट द सेम इंस्टेंस आपने अपना टैब खोला और ये चला रहे हो, कमांड चला रहे हो। आई थिंक पुनीत वो भी पिंग कर देगा टैग भी। गेट कमिट -m फर्स्ट कमिट, जैसे मैंने करा, जैसे मैंने किया, अब आप देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ मैंने ये 5 फाइल्स बनाई, इन पांचों की पांचों फाइल्स को मैंने कमिट कर दिया। मैंने कमिट कर दिया। कमिट कहाँ कर दिया? मतलब वो गिट रेपोजिटरी पे पहुंच गई, एक पिक्चर इंस्टेंस का क्लियर हो गया। अब ये पिक्चर क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो गिट रेपोजिटरी से, तो बताओ। वापस रिकॉल करो, क्या रिकॉल करना है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम वापस रिकॉल करो। मैंने बोलता 1.0, 2.0, 3.0, ये सब क्या थे यार? 1.0 फर्स्ट कमिट, 2.0 सेकंड कमिट, 3.0 थर्ड कमिट। समझ रहे हो? जब भी एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है तो हर बार मैं कमिट कर रहा हूँ मास्टर ब्रांच में। जब भी मास्टर ब्रांच में कोई कमिट होता है, याद रखना मास्टर ब्रांच हमें बोला है, ब्रांचेस को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मास्टर ब्रांच में जब भी मैं कमिट करता हूँ वो एक नया वर्जन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला गेट कमिट माय फर्स्ट कमिट, तो इससे क्या हुआ है? इससे हुआ है पहला वर्जन क्रिएट हो चुका है। इतना अगर क्लियर है तो चैट पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, चैट पे बता दीजिए कि हाँ
क्लियर है। अगर क्लियर है ना तो आप मतलब समझ रहे हो स्टेयर्स चढ़ चढ़ के बहुत ही करीब आ रहे हो मंजिल के बहुत करीब आ रहे हो यार आप लोग। काफी सही यार, काफी सही। मतलब बहुत सारे लोग सर क्लियर पिक्चर होगी, सर पिक्चर क्लियर होगी भाई, बहुत सही यार, बहुत सही। फायर कर दो, मतलब पता है एक काम करो, फायर कर दो, अपने 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 लिए फायर करो भाई, अपने लिए फायर करो, क्योंकि तुम ओपी काम कर रहे हो ना यार। मैं भी कर देता हूँ भाई, मैं भी कर देता हूँ ओपी। ओपी चार्ट, ओपी चार्ट, ओपी चार्ट, ओपी भाई, चार्ट ओपी हो जाना चाहिए भाई। एक नंबर यार, बहुत सही चार्ट भाई, एक नंबर। नाइस, अमेजिंग 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 अमेजिंग। सर वॉइस स्लो आ रही है, अच्छा वॉइस स्लो आ रही है क्या? अब बताना यार, थोड़ा वॉइस का अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वॉइस आई थिंक वॉइस चैट ओपी मैराथन स्पॉन्सर स्टैक और फ्लो भाई भाई पता नहीं यार भाई, क्या पता। नहीं यार अभी तो इतना नहीं हुआ होगा, रीच नहीं पहुंचेगी, लेकिन इसकी रीच अगर पहुंच जाए तो काफी सही होगा। एक फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, बट आई होप कि मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो आपके दिल तक आवाज जा रही होगी। अगर दिल तक आवाज जा रही है तो आई एम वेरी मच फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं मतलब हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे दिल की आवाज जा रही है ना, तो लिख दो हाँ सर आपकी आवाज, दिल की आवाज हमें आ रही है। जो आप बोलना चाह रहे हो ना, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, वो आपको हो रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है सब कुछ। क्लियर पिक्चर सर, क्लियर पिक्चर, क्लियर। और भाई एक नंबर, मतलब बहुत सही है, मतलब बहुत सही जा रहा है यार, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। अरे अरे एक दिल दिल बना था भाई, दिल पे लग गया हो यार, दिल पे लग गया भाई। अरे भाई बहुत सही यार, एक गजब यार, गजब भाई, नेक्स्ट लेवल करते हैं तुम, माहौल नेक्स्ट लेवल करते हैं। ठीक है भाई, ये सब भी कर दिया भाई, गिट कमिट मैंने कर दिया, फर्स्ट कमिट कर दिया। अब मैं एक बार गिट स्टेटस देख लूं क्या? गिट स्टेटस देख लूं क्या? चलो गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस। अब जैसे मैंने गिट स्टेटस रन करा, एंटर किया, मैं ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फाइल आपकी वर्किंग डायरेक्टरीज में थी, जो स्टेजिंग डायरेक्टरीज में थी, वो सारा पिक्चर क्लियर हो चुका है। हमने उसको फाइनल उसकी डेस्टिनेशन पे, मतलब रिलेटिव की प्लेट में डाल के हम आ गए। जो आपने जो ऑर्डर किया था, जो आप रिलेटिव्स को खिलाना चाहते थे, वो हमने रिलेटिव्स की प्लेट में डाल दिया। ये सिंपल सा मतलब है लेमन लैंग्वेज के अंदर, समझ रहे हो? वर्किंग ट्री क्लीन मतलब सिंपल सिंपल। देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी बोलता तो बहुत वैसी वैसी है कि ट्री क्लीन हो गया, ये क्लीन हो गया। थोड़ा सोचना यार, क्या ही क्लीन कर लोगे? अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है? अच्छा मैंने रिलेटिव की प्लेट में खाना डाल दिया, तो भी तुम ऐसा जब गिट वगैरह का सीन में आए ना, तुम वही शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स याद कर लेना, और बस तुम लगे पड़े हो भाई, जोर शोर से तुम मजे मजे पेले जा रहे हो भाई, एक नंबर मचा रहे हो भाई, धमाल मचा रहे हो, समझ लो भाई। बहुत सही यार, एक नंबर, अमेजिंग अमेजिंग भाई, अमेजिंग। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड था, पता है इस सेशन, एक बात बताता हूँ यार, इस सेशन के लिए मतलब मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मेरे को लगा यार पहला सेशन है, मतलब इससे पहले मैंने आज पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया भी है तो मतलब ऐसे बीच में पढ़ाया था। मुझे पता नहीं था यार एक ऐसा सेशन जाएगा, लेकिन मुझे था यार, मुझे कॉन्फिडेंस थी कि हाँ यार जो मुझे चीज आती है वो मैं अगर डिलीवर कर पाया, तो जो मेरे को दिल से टच है ना, वो आपको भी अगर दिल से टच हो जाएगी तो मतलब मैं सफल हो जाऊंगा। सफल मतलब एक तरीके से फील हो जाएगा कि हाँ यार मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था कि लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मैंने कर दूं। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने खुद से यहाँ पे बनाई है, मतलब खुद से मैंने एनालॉजीज क्रिएट करी कि अच्छा किस तरीके से रियल वर्ल्ड से वो करे। तो मेरे ख्याल से जब आवाज चले जाती है ना, तो बहुत तरीके से कनेक्शन हो जाता है, मेरे ख्याल से कनेक्ट आपको कर चुके होंगे। एक नंबर, बहुत सही यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, इतना सब हो गया। सर प्रिपरेशन दिख रही है, अरे प्रिपरेशन भाई, प्रिपरेशन वैसे मैं कुछ करके नहीं आया हूँ भाई, वो तो बस जो दिल में है ना भाई, जो दिल में है वही बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब करते हैं अपन दिस इज नेचुरल भाई। केजी यार भाई, केजी सर, एक केजी सर ओपी कर दो यार, चार्ट में केजी सर ओपी हो जाना चाहिए, मतलब केजी सर भी यहीं पे है ना, मतलब वो बोले जा रहे हैं भाई, ओपी कर दो भाई, केजी सर ओपी भाई, नेक्स्ट लेवल यार, गदर मचा रखी है भाई केजी सर ने। भाई 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 भाई, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, बहुत सही यार, एक नंबर। चलो ठीक है, आप लोगों ने ये सब कर लिया। अब मैं चलता हूँ एक नई चीज पे, एंड डाटा एक बार देख लेता हूँ मैं, गेट कमेंट हो गया, सब हो गया, मोटर। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मुझे पता है वो घड़ी किस चीज की थी। एक मैं कैमरा दबा से स्क्रीन ऑफ करता हूँ और कैमरे से कैमरा स्क्रीन टू स्क्रीन बात करता हूँ। जिस चीज का आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार करा था कि सर गिट हब, हम तो गिट हब करने आए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये गिट वेट तो चलो ठीक है, लेकिन गिट हब कब होगा, हमें वेबसाइट पे बनाना है, एड्रेस सब बनाना है। तो दोस्तों अब वो बात शुरू हो चुकी है।
अब यहाँ से हम गिटहब स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इतना क्लियर है तो मेरे ख्याल से स्टार्ट लिख दो कि सर वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू गिटहब, क्योंकि गिटहब में फील ही आएगा, अलग ही तुम फील आ जाएगा। हाँ सर, वी आर वेरी मच, बहुत से। तो जैसा मैंने गिटहब तुम्हें पहले बोला, गिटहब क्या है भाई? गिटहब एक गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव किस लिए है भाई? जो कोड मेरे पास सीपीयू में है, जो डेस्कटॉप पे है, उसको मैं बस क्लाउड पे डालने वाला हूँ, वही काम कर रहा है गिटहब। कोई बड़ी हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है गिटहब। गिट है हाईफाई टेक्नोलॉजी। गिटहब क्या है? गिटहब तक होस्टिंग सर्विस है जो प्रोवाइड कर रही है उसको वो करने का। ठीक है, तो ये सब है। ओके कूल, ठीक है। हमने ये देख लिया कि चलो ठीक है, गिट स्टेटस वगैरह सब कुछ हमने एकदम क्लैरिफाई हो गया। अब हम खोलेंगे एक और नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 3 रेपोजिटरीज की बात करी थी। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी स्क्रीन शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है तो मैं को चार्ट में लिख दूँ। हाँ सर विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। यस यस विजिबल, बहुत सही। मैंने यहाँ पे 3 स्टेजिंग एरियाज के बारे में बात करी थी। ये क्या था? ये था मेरा वर्किंग रेपोजिटरी। ये क्या था मेरा? ये था मेरा स्टेजिंग एरिया। ये क्या था? ये था मेरा गिट रेपोजिटरी। ये पूरा सिस्टम मेरा कहाँ था? ये पूरा सिस्टम था मेरा लोकल मशीन पे। कौन सी मशीन पे? लोकल मशीन, मतलब बिना इंटरनेट पे चला रहा हूँ भाई। ये सब तो मैं बिना इंटरनेट कर पा रहा हूँ, ये सारा काम तो बिना उसके कर पा रहा हूँ। अब पिक्चर कब आया? जब आप एक ऐसी रेपोजिटरी बनाओगे जिसको मैं बोलूंगा रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी, आविक सर प्लीज चेक। एक मिनट रुकना, एक मिनट यार। व्हाट्सएप तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट बाद में चेक कर लूंगा यार। सॉरी, अभी थोड़ा फोन वैसा रखा हुआ। रिमोट रेपोजिटरी जरूरी है। ओके अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से गिटहब का जो सेशन रहेगा ना, मेरे ख्याल से हमें स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पे सेशन को। तो गिटहब में काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, फ्रेश माइंड से गिटहब स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोलते हो कि मतलब नेक्स्ट क्लास है तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओगे, मैं भी एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ही अपन कंट्रीब्यूशन वगैरह, ओपन सोर्स वगैरह बता देंगे। बताओ भाई। यस सर, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि टाइम भी हो गया ना, मतलब 12:08 हो गया। आप मतलब इतना टाइम तो कोई नहीं रुकता, लाइक फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्लास कब प्लान करना है मुझे ये बता दो। मतलब नेक्स्ट क्लास कब प्लान करना है कि मतलब मतलब थर्सडे फ्राइडे कब? मतलब एक और मतलब जैसे मैं मंडे ना, मंडे ट्यूसडे बना, थर्सडे फ्राइडे से कोई डे बताओ, थर्सडे या फ्राइडे। या फिर मैं ऑर्गेनाइजर मतलब इनसे बात करके बात करूंगा, ऑर्गेनाइजर से, से जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, मॉडरेटर्स वगैरह, इन सबसे बात करूंगा। योर टू, थैंक यू सो मच ब्रो। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ भाई, लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। ठीक है, ओके। तो जो भी नेक्स्ट सेशन की जो भी फाइनल डेट होगी, जो भी मॉडरेटर्स के साथ में बात करके जो भी डिसाइड करूंगा, उसमें हम गिटहब कर लेंगे और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी वहीं पे बताऊंगा। तो आज मेरे ख्याल से इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। और भाई 12:30 नहीं हो पाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल 12 बजे एंड ही करना था, तो इतना ही काम है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एंड करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आगे मिलते रहेंगे, मेरे ख्याल से मिलते रहेंगे। एक बार मैं और सेशन ले लूँगा गिटहब पे, अगर तुम्हें कुछ और भी पढ़ना है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी। ऐसा तो मुझे बहुत कुछ आता भी नहीं है, बट जितना हो सकता मैं कर दूँगा। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई Thank you थिंक, so much, sir, for joining us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you, everyone. थैंक यू गाइस, विल सी यू after I will talk to the moderators. Bye.